AYUSH Samriddhi is your platform, which has been nurtured and nourished by your cooperation, contribution, participation, and mentorship. So I'm really overwhelmed with the guidance from the guardians, support from resource persons, and speakers for their expertise. Thank you, thank you, thank you for teaching me so beautiful topics, so in deep, really in deep. And we are really thankful to all who are attending our webinars. Thank you very much. I welcome Professor V.K. Agnihotri. I welcome. Pavanji, we lost your voice. आप लोगों को आवाज आ रही है अग्निहोत्री जी? आ रही है, यहाँ तो आ रही है, बिल्कुल ठीक, साफ आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। आपके में कुछ गड़बड़ है, प्लीज चेक योर कनेक्शन सर। तो आवाज ही नहीं आ रही ना। आपको आ रही है? जी सर, हमें आ रही है। थैंक यू सर। तो आदरणीय सीवी झा सर को नमस्कार है, आदरणीय अग्निहोत्री सर, आदरणीय पारुल जोशी जी, श्री महेश शर्मा जी, और आज के स्पीकर्स वैद्य श्रीराम जी और मैडम केसीपी गुणरत्ने जी. I would like to welcome all the speakers by my heart, core of my heart, because we are reaching towards 500 number, and I am confident that within this month this number will be achieved. So thank you very much. Now, without wasting much time, I would like to request Professor V.K. Agnihotri for his blessings. Namaskar. Thank you, Professor Pawan Sharma ji, and our respect to all our guest speakers and along with all the audience and viewers. As Professor Pawan Sharma ji settled today's topic on protest, especially AYUSH, the best protest healthcare. आवाज नहीं आ रही है सर, थोड़ा चेक करिए, आपका वॉल्यूम तो नहीं है, वॉल्यूम इनपुट है। हेलो मैडम गुणरत्ने जी, आपको आवाज आ रही है? Yes, I can hear. क्लियर आवाज आ रही है, सबको आ रही है सर। सर थोड़ा देखिए, आपके एंड पर कहीं कुछ कनेक्शन में कुछ। मैं फोन पे बात करता हूँ, ये अपन बोल रहे हैं, ये भी तो उनको आवाज नहीं आ रही है ना, इसलिए नहीं आ रही हो, ये बेटर है आप मैंने यही कहा, आपकी आवाज सुन। जी। So it's our great pleasure that we are again assembled today to conduct our 484th webinar, and we very proudly like to welcome you all, our distinguished guest speakers, including Madam Professor KCP Gunaratne ji from Sri Lanka, Colombo, our Shri Ram Sharma sahab, our Bhargav sir, our Dwivedi sir, and all these dignitaries are having their knowledge of this field, and I am really amazed and will like to hear much more from Madam Gunaratne, because this organ is in males and the males suffer. Of course, being a family member, the pain also referred to the counterpart also. So in that way, how she is managing or how she is getting the patient on with this problem by her patients, that my husband is suffering from this thing and or these complaints are there, what may be the best remedy, how it is affecting the say their family life. Though it's say sometimes above 50 years of age males are usually suffer, but it may be even an earlier. So as it is said that it ultimately not only makes a problem to maturate properly because of this prostatic urethra suppression, but at the same time there is always a regular stimulation. Resultantly, females might be coming to you with the complaint that husbands are always in their mood, simply because of the excitement indirectly posed by the prostatic enlargement and all that. So we are all going to listen. These are very important things, especially our combination given by
Professor Pawan Sharma ji is wonderful. All the males will definitely enhance our knowledge, and so will Madam Gunaratne ji. Along with their remedies, these, as we know, that's Varnadi Path is one thing very important, which has been taken in studies by Professor G.C. Prasad sir there in BHU. And they found that the police was released simply because of this Varnadi Path Bhakti. So these things we are going to learn from you all. So with folded hands and with all the deepest depth of our heart, I welcome all the today's guest speakers, along with the Professor C.B. Jasar Guruji, and all those who have already joined and will join in the due course of time, along with our YouTube viewers, with the archive visitors also. So with these words, we wish all for our best webinar, and we may not fast, but we may continue to reach our brand Lara's record like 500, 501. So with these greetings, we do hope that Pawan Sharma ji is just going to make one more record. With these words, I congratulate him, and I honor and respect and welcome all our guys. Thank you so much. Over to Pawan Sharma ji. Thank you, sir. I welcome Professor Vishnu Prasad Sharma ji. Kindly share your experiences in brief, sir, with prostate. Welcome, sir. Yes, because it is a big problem. Not only in India, all over the world. As age increases, prostate problem is also there. Yes, you can do surgery, but in all cases, because it is a old age diseases, you cannot do operation in so many cases. At that time, Ayurveda shows very good result. In early stage also, we can keep the patient healthy, but he has to take the medicine for longer period. In my experience, I prescribe more medicine regarding Pulonovaticubul, Bongsil tablet, Fortes tablet for longer period. It also, size has also comes down in my experience from third grade to second, first, like that. And nowadays, Prostacul is also there, one house from the Australian herbs. It also have very good result. But Ayurveda can show very good result. If it is malignant, then we have to go for surgery and other things. But normally, benign prostate hypertrophy, if patient come early stage, then we can keep the control without any side effect. Patient get more relief. Because once complication has developed after doing operation, then there is no other way to cure the complication. From my side, this is the experience. Thank you Namaskar. very much, Over to Pawanji. Thank you very much, sir. Now I would like to request Dr. KCP Gunaratne ji, KC Priyadarshini Gunaratne ji. She is consultant surgeon in Vikramgachi Teaching Hospital, Yakkala, Sri Lanka. Welcome, madam. You can share your presentation. Yes, sir. प्रकाश त्रिवेदी जी को नमस्कार है. क्या हुआ बंधुवर, उस दिन क्या हुआ? सर क्या कहते, मैंने आपको बताया था ना, वो बहुत लेट तक गए थे, तो कैसे ज्वाइन कर पाया. ठीक है, हम लोग मिलते रहेंगे, ऐसे मिलना है, बड़ा खुशी हो रही है. स्वागत. मजबूरी थी मेरी थोड़ी सी, इसलिए मैं कहा कि बिल्कुल. He is astrologer. He was the speaker on medical astrology, but unfortunately, Om Birla came to his house. Oh, our speaker, honorable speaker. How can be he speaker? How he cannot be speaker in front of the national speaker. He is the speaker for parliament, so in front of him. well. So, Madam Gunaratne, welcome. Sir, can you share, sir? It's not sharing from my side, sir. Have you sent to me? Yes, sir. Yes. Huh? When? Yes, sir. When? In the evening, sir. Shall I send again?
No, just I am checking. Okay. Just Sir, a till second. that yes, sir. Yes, you can continue till then. Yeah, sir. Ayubowan, good evening to all distinguished practitioners and all dear sirs and all other participants. Actually, I am going to talk according to that prostate problems. The thing is actually in our text, it's not mentioned that much detailedly, but with my experiences around 7 to 8 years in Sri Lanka, especially after being a surgeon, so I have treated so many patients, I think more than 2,000-3,000. So they have got a good result. Because of that, I thought to present this presentation today. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, this is the topics I have selected today as Nidana, etiology of Mutra Pahashoto Dushti, Samprapti of Mutragata, Samprapti Gataka, diseases with obstruction, Mutrashtila or Vatashtila, Samprapti, prostate abnormalities, examination, investigations, complications, then Mutragata Chikitsa, Upadrava or Arishta Lakshana, and lifestyle measures of managing BPH. Actually, this is not only the specific disease, but because of the age they are getting, it's a natural thing. It's a natural phenomenon. While we are getting old age, we are getting skin changes, hair changes, and other changes. Likewise, that males after 40 years, they will get increase their size of the prostate gradually with the age. Yes, sir. Then if you consider Nidana, what I earlier also mentioned, that in our text they have not mentioned directly the Nidanas, but we can take that Mutragata Nidana of this Vata Ashtila even. Then factors which are responsible for Mutra Kvitcha can be taken also. Then what are the Nidana according to the Vatakopata, Ati Vyayama, Tikshna Aushada, Ruksha Madhya Prasanga, Nityadushta Pratisthana, Anupamansa, Abhyashana, then Ajirna. Then what kind of etiology of Mutra Vaha Shotodushti? Here they have mentioned Sri Sevana, drinking or eating while urge of micturition, Mutra Nigrahat, then emaciated persons, and abhikshata, that means trauma to urine passages. Then all above Nidana are responsible for Vata Dushti, root factors in the manifestation of all the varieties of Mutragata. According to Dalhana Acharya, it have mentioned Sarveshu Mutragateshu Yato Vat Karmanam. Then Samprapti of Mutragata. Next one, sir. Acharya Susutta states that importance of Pratiloma Vayu in the Basti Roga, such as Mutragata, Prameha, Shukradosha, and Mutradosha. Acharya Dalhana quotes that Vata is the main factor in the pathogenesis of Mutragata. Acharya Charaka states that when Amavish, the vish gets localized, the urine leads to Mutra Roga. Then what are the Samprapti Gataka? According to our text, we can consider dosha, especially Vata, predominant with Kapha and Pitta even. Then Dusha, Rasa, Rakta, Kleda, Sveda, Mutra. It depends on the different clinical entities. Then Agni, Jataragni Mandya, Udbhavasthana, Koshta, Adhisthana, Basti, Shrotas, Mutravaha Shrotas, Shroto Dushti, Prakara, that Sangha, Vimargamana, Sirajaganti, then Roga Marga Madhyama, and Vyaktis in the during the act of the micturition. Then what kind of diseases with obstruction?
that our text they have mentioned Nirudra Prakasha, Ashpari, Mutragata. Other types of Mutragata, that Vatashtila also coming under Mutragata. Then what's the Mutrashtila or Vatashtila? The vitiation Apana Vayu when takes the seat of the space between Basti and Shukra Marga produce firm lobulated growth like that of Ashtila. Next one, sir. The growth is turned to produce obstruction to the passage of with Mutra, Anila and leads to Adman of the Basti and also pain in the region of Basti. The name Ashtila is given by Charaka for the disease vitiated by Vayu obstruction, the Basti Mukha and Guda leading to prominent mobile stone-like mass, which is in the turn causes obstruction to the passage of the urine and feces. Then we'll see what is the Samprapti of Ashtila. Next one, sir. Mithya Ahara Vihara, then Abhigataja or Vega Nigrahana. These are the special Nidana. Then it goes to Apanavata Dushti. Next one, sir. Yes. Then it's Stana Samshraya in the between Guda and Basti. Then it will cause Ashtivat Gana Granthi is formed. It is Mutrashtila will all the Lakshana predominant. Then what kind of prostatic abnormalities we can see? Normally, majority of the males, they are coming with benign prostate hypertrophy. Then some are coming with acute condition prostatitis and some are coming with prostate cancer even. Then what is the voiding or obstructive symptoms? Then that is straining to pass urine, hesitancy, prolonged micturition, poor stream, terminal dribbling, intermittent stream, then sense of incomplete bladder emptying. Then what are the storage or irritative symptoms? Urinary frequency, urgency, urge incontinence, nocturia, incontinence. Especially that patients, they are telling not only the daytime, they are getting urge to urination in the night. Sometimes they are telling 6 to 8 times per night. That is the very sad part of their night sleep, because they are getting interrupted their night. Then what are the examinations we can do for this kind of patients? Physical examinations, we can do digital rectal examination and focus neurological examination. While we are doing digital rectal examinations, we can see the size and the consistency of the prostate, then the surface of the prostate, whether it's smooth and convex, then consistency mostly in firm. Then sulcus felt in the midline between the two lobes. Then BPH result in the smooth, firm, elastic enlargement, prostate size and the determined by digital rectal examination does not correlate with severity of symptoms and or degree of the obstructions. Then what kind of investigations we can ask for the patient to see? Especially we can ask ultrasound of pelvic and abdomen. Then we can see the prevoidal volume and the postvoidal volume and the prostate size or the volume. Then we can go for the PSA or prostatic specific antigen. Normally that specific antigen must be less than 4 if it's a benign condition. If not, it will increase. But because of prostatitis even, it can increase sometimes. Then urine analysis, because a lot of patients, they are having inadequate urination. That means they are remaining some urine in their bladder. Because of that, we have to see any infection or something remaining in the bladder. Because of that, we can see the urine analysis. Then serum creatinine to assess the renal functions. Then they are telling that poor stream of the urine. Because of that, we can see urofluorometry. From that, we can see the velocity of the urine flow. Then ureteroscopic, especially they are good for, especially to exclude the cancer and other things. Then cystoscopy and a lot of
examinations we can do likewise. Then we'll see what are the chikitsa of prostate. Then general line for the treatment for mutra dosha, we can do sneha, sweda, virechana karma and uttara basti. Then what kind of management we can do for ashtila? First we have to correct their agni, so agni deepana, then we have to do the amapachana, then vata kapha shamana, daihika chikitsa we have to do. Then we have to do basti karma, either classical or matra basti or uttara basti. Then we have to do the sthanika snehana, then sthanika swedana, either pottali or nadi sweda. Then what kind of actions we are expecting from this treatment? Vata shamana, then shotahara, lekaniya, mutra karaka, mutra shodaka, grantihara, kapha shamana. Especially these patients, they are telling they are not passing urine properly. Because of that, we have to give mutra karaka. And some they are having that remaining urine in their bladder. For that also we have to go mutra karaka drugs. Then because of their infections very common, we have to go for mutra shodaka drugs. Then because of that size of the granthi has increased, we have to do the grantihara chikitsa. Then at the same way we have to go to shotahara chikitsa because if not they will obstruct their urinary passage. And because of the apanavata is the main problem or main cause for the ashtila, we have to do the vata shamana and as well as the kapha shamana treatments. Yes, sir. There is not mentioned separate chikitsa for mutra ashtila, but mutra gata chikitsa and granthi chikitsa can be implemented, especially sneha karma, svedana, basti, uttara basti, ashmari nashana chikitsa. Why we are talking about that ashmari nashana chikitsa? If that urine, next one, sir. Next one. Previous one, sir. Previous one. Previous one, sir. Previous one. Previous one, sir. Why we are considering about ashmari nasha chikitsa? Because if they are having remaining urine lot of time or remaining prolonged time, they will be develop some mutrasha ashmari, and some are having shukra ashmari even. So we have to do the ashmari chikitsa. Then what type of common medicines we can use for treatments? Kind of kashaya, kalka, sarpi, lehya, paya, shara, madhya, asava, churna and thaila we can use according to the situation. Then if you consider what kind of kalka we can use, then musta, abhya, devadara, murva, yashti madhu kalka. If not abhya, amalaki, vibhitaki, bhadra, saindava lavana, jala, etc. The kalka we can use. Then kashaya we can use as previous that sir told, varunadi kashaya, then eranda bilva kashaya, dantimula kashaya, udumbara draksha jala used as shuta shita. If we are using churna, we can use tripala churna, trayushnadi churna, then gumutra hartaki churna. Then what kind of vati we can use? Kanchanara Guggulu vati, Chandraprabha vati, Gokshura vati, then Yogaraja Guggulu. Then what kind of arishta we can use? Kutaja arishta, Abhya arishta, Dantya arishta. Then Sarpi, Baladi grita, Mahabaladi grita, Chavyadi grita, Varunadi grita. Then what kind of shira we can use? Kakulyadi gana shira with Sarpi, then Nala, Pashana, Veda, Darba, Ikshu. Likewise, we can use lot of kind of shira. Then what kind of shara we can use? Shara, Patala shara with Tila Taila, Patala Yavakshara, Paribhadra, Tila. Likewise, we can use a combination of shara or single drug shara, or Sura, Madhu, Madhya, then Mamsa,
Gaudika, etc. Then what kind of oil we can use? Actually, for these patients, we can ask to apply some oil in their lower region. For that, we can use Narayana Thaila, then Nirgundi Thaila. Likewise, Vata Samana Thaila, we can ask them to apply, and we have to ask them to do either Pottali Sweda or Nadi Sweda with Vata Shamana Dravya. Then what kind of Upadrava or Arishta Lakshana we have to see from them. If the pain in Vatashtila or Mutashtila moves upwards towards heart, causing pain and anorexia, it all indicate death beyond doubt. Some patients actually, they have come to me with severe hematuria, or they have been having anuria. At that time, they came with urine catheters. But luckily, within 2 to 4 weeks, I could remove their catheters, and they have cured, and they have mentioned to go under that surgeries. But now they have totally cured without any surgeries, and they are coming follow-up still from 2 to 3 years. I'm so happy to tell. Likewise, they have a lot of patients. Then what kind of complications can happen because of BPH? Retention of urine may be acute or chronic. Recurrent urinary tract infections, most are coming with fever, chills, and because of that, then while we are going that investigation, we can see they are having UTI. Then bladder calculi, and secondary bladder instability. Then renal impairment and hematuria, as I mentioned earlier. Then what kind of patya we can ask them to use? Then Abhyanga oil massage, what I earlier asked, that Vata Shamana oil. Then Snehana, that is medicated with an oil internally. Then Virechana, oil purgatives. Then Basti, then Uttara Basti, Svedana, and Avagaha. There also we can ask that patient to do that Vata Shamana Kvata Avagaha for their lower abdominal side. Then what kind of diet we can ask them to use? As cereals, more than 1 year old rice, jangala mansa, milk, buttermilk, curd, and its products. Then moong, masoor pulse, then snake gourd, pushpanda vegetables, then tender coconut, dates, coconut grapes as foods, then spices, ginger, garlic, fenugreek seeds, etc. Then wine, medicated wines as Sura, Asava, and Arishta. These all quantity must be dependent according to the patient's situation. Then what kind of common herbs we can prescribe for Ashtila? Varuna, Kanchanara, Patla, Pashanbeda, Methi, Shilajit, Ashwagandha, Gokshura, Kadira, etc. Then what are the apatyas for these patients? Viruddha ahara, then excessive exercises. Food leads to constipation, suppression of micturition, vivaya, then tila, meat of deer, and offshoot of bamboo, then dry and ferment food items. Then what is the lifestyle measures for managing BPH? Urinate as soon as urge arise. Then remain sexual activities, take time to empty the full bladder, because a lot of patients, they are telling they are not emptying their bladder fully, but they have to take much time to empty their bladder. Then drink sufficient water daily. Why? Because they are mostly getting recurrent UTI. So we have to ask that patient to take more water to flush out all germs from the body. Then do pelvic floor muscles exercises. Then keep warm and exercising, because if not, they will get more urine terms to pass. So if they are in warm places, then they can decrease their number of urination. Then bladder retaining by using timely voiding, because they have to train their bladder to remove their urine. So they have to train their bladder to remove the urine. Then maintain a voiding diary.
That's also very important thing, because they have to count how many times they have gone, and they have to count what are the volume they have to take and what are the volume they kept out. So they have to maintain the voiding diary and control stress and reduce mental stress. Because of the stress and the mental conditions also, they are getting some kind of signs and symptoms. Because of that, they have to control their mental problems. Then what are the things they have to avoid? Controlling of natural urges, especially urination and defecations. That means vegadharana. Then more liquids intake close to bedtime. If they take more liquids in the night time, then they have to go for urination sometimes 6 to 8 times in the night. So better to avoid that more liquids in the night time. Then excess of alcohol, coffee or tea. Then medicaments that aggravate the symptoms. Sometimes they are getting a lot of other medications. Because of that, they are getting this kind of problems. So they have to limit their unnecessary medications. Then food leads to constipation. Because if they are getting constipation frequently, they will get apanavata kopata. Then dampness and coldness temperature. Because of that also, they will get frequency urinations. Then what is the summary of the topic today? Ancient Acharya has not mentioned any specific causative factors for Mutragata. Factors which are responsible for Mutrakricha can be considered. Acharya Susuta state that importance of Patiloma Vayu in the Basti Roga, such as Mutragata, Prameha, Shukra Dosa and Mutra Dosha. Acharya Dalhana quotes that Vata is the main factor in the pathogenesis of Mutragata. Then Acharya Charaka state that when AYUSH gets localized in the urine leads to Mutra Roga. The Visheshan Apana Vayu, when takes the seat in the space between Basti and Chakrut Marga, produce firm lobulated growth like that of Ashtila. The growth is turned to produce obstruction to the passage of with Mutra Anila and leads to Adman of the Basti and also pain the region of the Basti. Then what is the conclusion today? Then prostate abnormalities occurs due to Apanavata Dushti, especially because of the increasing age. Mutrashtila separated chikitsa not mentioned. Mutragata chikitsa and Granthi chikitsa can be adopted as the treatment. Then treatment can be done with many type of medicines, and following Patya, Apatya, Ahara and Vihara is the more essential things. Thank you, sir. Thank you, sir. Worth listening in this old age, worth listening. Excellent, madam, excellent. I don't hope that you have left anything. Excellent. Agnihotri, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Wonderful. I'm sorry, I was just considering you as a gynecologist. You are surgeon. I just afterwards I recapitulated. So there is no question of gender. The patient might be coming to you directly, the male patient, and you have done a lot out of your one experience. That person who was suggested for surgery, you treated, and still he is coming in follow-up for last 2 years. This is really wonderful. The same was there in our knowledge that Professor Dr. Sunil Joshi did this work under Professor J.C. Prasad sir regarding this prostatitis and BPH. And the Foley's was incidentally taken out simply because of the inflammation was gone, and the prostatic urethra became okay. So it was a great achievement, and this is what the Ayurveda is. So your Varnavadi Koath, your all the things I just noted down, especially the Punarvavati, the Fortage, which were told by Dr. B.P. Sharma ji, Fortage tablet, Banshil tablet, and Kashur Gulu, these are all supportive therapy. And PSA, if you carry down the PSA under control, things will be definitely all okay. So thank you so much. And please continue with all this knowledge enlightenment to us all so that our webinar platform will survive. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Thank sir. you, I sir. go on. Good night. Thank you very much. We will be listening you on Cancer Day also. Welcome. So now I would like to request Dr. A.K. Dwivedi, very senior homeopathic physician, expert, founder, chairman of Advanced Homeo Health Center and Homeo Medical Research Private Limited, Indore,
तो हरिओम, वेलकम वेलकम द्विवेदी, वेलकम, स्वागतम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही मेरी शर्मा जी? बिल्कुल क्लियर क्लियर क्लियर। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारा धन्यवाद प्रोस्टेट पे बात करने के लिए, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से प्रोस्टेट पे काफी अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि प्रोस्टेट पे मैं मेरे एक्सपीरियंसेस काफी अच्छा शेयर कर पाऊंगा। पहले हम देखते थे कि प्रोस्टेट की जो परेशानी होती थी वो लगभग 40 साल 45 साल के बाद के लोगों में होती थी। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो 40-45 साल से लेकर के 90-92-95 साल तक के पेशेंट आते हैं। दो तरह के पेशेंट आते हैं, एक तो जिनका पीएसए नॉर्मल रहता है उनमें प्रोस्टेट की परेशानी, और दूसरा जिनमें पीएसए बढ़ जाता है, एडिनोकार्सिनोमा या फिर बीपीएस, दोनों तरह के पेशेंट आते हैं। लेकिन अगर मैं आज की स्थिति की बात करूं तो अब मेरे पास ऐसा 25 साल 32 साल और 40 साल के नीचे के लोग भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि उनको प्रोस्टेट की शिकायत बता दिया है यूरोलॉजिस्ट ने। तो मैं आपके माध्यम से या आपके जो भी फिजिशियंस हैं उनको ये भी बताना चाहता हूं कि जब भी इस एज ग्रुप के लोग आए तो उनको आप समझाइश दें कि ये प्रोस्टेट की परेशानी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर समय पेशाब की परेशानी प्रोस्टेट की ही परेशानी हो। क्या होता है कि कॉमनली उसको जब भी पेशाब से रिलेटेड परेशानी होती है और वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनको ये बता दिया जाता है कि उनको प्रोस्टेट की परेशानी है। पर ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पेशाब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैं बात करूं तो प्रोस्टेट की जो परेशानी है वो पुरुषों को है, लेकिन जो यूरिनरी प्रॉब्लम है, अगर मैं यूटीआई की बात करूं तो फीमेल्स को यूटीआई की परेशानी काफी ज्यादा होती है। तो वैसे ही पुरुष की जिसकी एज कम है उनको अगर यूरिन की परेशानी हो रही है तो उनको दूसरे जो रीजंस हैं उसको हमको देखना चाहिए। जैसे सिस्टाइटिस हो सकती है, यूरिनरी स्ट्रिक्चर्स हो सकता है, स्टोन हो सकता है, ऐसी जो परेशानियां हैं, या कोई इंजरी हो सकती है, या स्पाइनल पे कंप्रेशन हो सकता है, या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसके कारण भी प्रोस्टेट की परेशानी या पेशाब की परेशानी हो सकती है। तो हमको दूसरे रीजंस भी देखना चाहिए, दूसरे कारण भी जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं जैसे प्रोस्टेट की अगर उनको परेशानी है, जो रियल एज ग्रुप होती है, जैसे 45 साल से प्लस जो एज ग्रुप होती है, जैसे जैसे हमारे पुरुष भाइयों की उम्र बढ़ती चली जाती है तो उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ते चले जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना एक बात है। मेरे पास 27 ग्राम 30 ग्राम से लेकर के 112 ग्राम 114 ग्राम तक का प्रोस्टेट लेकर के लोग आए, और ऐसे भी लोग आए जिनका 2-2 बार 3-3 बार ऑपरेशन हो चुका था, उसके बाद भी उनकी प्रोस्टेट की समस्या खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी तो हमारे प्रोस्टेट की साइज बढ़ेगा, लेकिन प्रोस्टेट के साइज बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सभी को यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। अगर आपका प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा है और उससे यूरिन रिटेंशन नहीं हो रहा है तो आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। हमको सोनोग्राफी करा करके देखना चाहिए उसका पोस्ट वाइड यूरिन, जिसको हम पीवीआर बोलते हैं, पोस्ट वाइड यूरिन। अगर पोस्ट वाइड यूरिन उसका 30 ml या 40 ml तक है तो फिर उसको कुछ दवाई का जरूरत नहीं है। सिंपली आप कुछ एक्सरसाइज एडवाइस करके भी आप उसको सलाह दे सकते हैं। हम लोग जो उनको योग और एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है सेतु बंध आसन। ऐसा ब्रिज जैसा उनको बनाना होता है। सेतु बंध आसन करने से प्रोस्टेट की परेशानी उनकी काफी हद तक कम हो सकती है। और दूसरा जो है उनको सीट बाथ कराएं। सीट बाथ लोग पाइल्स में देते हैं। पाइल्स के साथ साथ अगर आप प्रोस्टेट के लोगों को भी इस परेशानी के लिए बताएंगे तो उससे भी उनको काफी फायदा हो सकता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि दवाइयों के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो इस परेशानी से छुटकारा दिला सकती हैं। तो उसमें एक है सेतु बंधासन और दूसरा है सीट बाथ। सीट बाथ बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका पीवीआर। अभी जैसे मैडम बात कर रही थी पीएसए की,
पीएसए जो है स्पेसिफिक प्रोटीन है जो बढ़ जाने से एडिनोकार्सिनोमा की बात की जाती है कि उसको अब बीपीएच नहीं है, एडिनोकार्सिनोमा हो गया है। तो एडिनोकार्सिनोमा में लोग उसको डायग्नोस करके और ऑपरेशन के लिए भेज देते हैं, लेकिन ऑपरेशन बहुत अच्छा उस पर सक्सेस नहीं है। तो ऑपरेशन करने के पहले मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा कि आप होम्योपैथिक दवाई करके देखें। अगर होम्योपैथी से आराम मिल जाता है तो हो सकता है आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़े। मेरे पास ऐसे भी काफी सारे पेशेंट आते हैं जिनका ऑपरेशन हो जाता है, उनके दोनों टेस्टिकल्स भी निकाल देते हैं। टेस्टिकल्स निकालने के बाद जो प्रोस्टेट कैंसर रहता है, जो एडिनोकार्सिनोमा रहता है, वो उनके फीमर्स में फैल जाता है और जैसे ही कैंसर बोन में पहुंच जाता है तब आपको कंट्रोल करना भी बड़ा कठिन हो जाता है। तो पेशेंट को ये सारी बातें हमको समझाने की जरूरत है कि आगे हम ऐसा क्या करें जिससे उसका परेशानी बढ़े नहीं। दूसरी बात, हमको उसको डाइट का प्रॉपर बताना चाहिए कि ऐसा क्या खान पान ले जिससे उनको परेशानी कम हो जाए। खाने में उनको अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मछली की सलाह देनी चाहिए, अगर वेजिटेरियन है तो उनको सोयाबीन या बादाम खिलाने की सलाह देना चाहिए। उसके अलावा टमाटर या गाजर का सूप पी लेने की सलाह देना चाहिए। और कई लोग उनको सलाह देते हैं कि आप पानी कम पिए। क्यों ऐसा सलाह देते हैं? क्योंकि रात में कई बार मरीजों को 4 से 6 बार या 8 बार या 10 बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। कई लोग बताते हैं कि हर आधे आधे घंटे या एक एक घंटे में पेशाब के लिए उठना पड़ता है, तो उससे नींद पूरी नहीं होती है और नींद पूरी होने न होने के कारण उनका जो अगले दिन का रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डलनेस रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो इसलिए उन लोगों को ये सलाह देते हैं कि आप पानी कम पिया करिए। पानी कम पिएंगे तो पेशाब कम होएगी। ये बिल्कुल गलत सलाह है। पानी उनको बराबर पीना चाहिए। पानी अगर कम पिएंगे तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो इस तरह का सलाह और नुकसानदायक हो सकती है। पानी बराबर पिए। हो सकता है दिन में 2 बार 3 बार सिट बात करें और सेतु बंधासन करें। सेतु बंधासन करने से उनको काफी आराम हो जाएगा। और हमको ये देखना चाहिए कि प्रोस्टेट के साथ साथ उनको और दूसरी क्या क्या परेशानियां हैं। सिस्टाइटिस तो नहीं है, उनको स्टोन तो नहीं है, या फिर उनको कोई चोट की हिस्ट्री तो नहीं है। ये सारा भी हमको देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं होम्योपैथिक दवाइयों की बात करूं तो होम्योपैथिक दवाइयां प्रोस्टेट पे किसी वरदान से कम नहीं है। अगर मैं दवाइयों की बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होम्योपैथिक दवाई है, हमारे दूसरे भाई लोग अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं, कोनियम मैकुलेटम है। कोनियम मैकुलेटम होम्योपैथी की सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है। ओल्ड एज के पेशेंट्स के लिए है कोनियम मैकुलेटम, और कोनियम प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट की सबसे अच्छी दवाई है। तो उनको हम कोनियम दे सकते हैं, कोनियम मैकुलेटम। पोटेंसी और डोजेस का सिलेक्शन हम उसके सोनोग्राफी रिपोर्ट के आधार पर करते हैं और उसकी परेशानी कितना है, मतलब प्रोस्टेट की साइज, पीवीआर और पीएसए, ये तीनों हम सामने रखते हैं। और मरीज कितने बार यूरिन जाता है हम उस बात को ध्यान में रख करके जब उसको दवाई देते हैं तो लगभग 7 से 10 दिन में ही जब हम अगली सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें बदलाव देखने को मिलता है। उसका जो प्रोस्टेट का साइज है वो कम हो जाता है, पीवीआर कम हो जाता है, और पेशेंट बताता है कि अब हमको पूरी तरह से ब्लैडर खाली होने लगा है। जो पहले ऐसा लगता था कि हमारा पूरी तरह से पेशाब नहीं निकल रही है, वो अब पूरी तरह से निकल रही है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, दैट इज द एपिस्मेल। कई बार पेशेंट आता है और हमको बताता है कि उसको असहनीय दर्द होता है या जलन होता है। तो जलन के लिए हमारे पास होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं। एक है एपिस्मेल, दूसरी है कैप्सिकम, तीसरी है कैंथ्रीस। तो ऐसी दवाइयां हैं जो जलन में आपको विद इन 2 आवर्स ही आराम दिला सकती है। तो हम जलन के लिए इस तरह से दे सकते हैं। उसके अलावा जिनको दर्द होता है या कई बार पेशाब में 2 धार या 3 धार, बोलते हैं कि पेशाब में 2 धार आ रही है या फिर पेशाब में ब्लड आ रहा है, तो उसके लिए हम एसिड नाइट्रिक या आर्निका दे सकते हैं। आर्निका इज द गुड मेडिसिन, तो उससे भी काफी आराम हो जाता है। उसके अलावा कई बार पेशेंट आते हैं, क्योंकि ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स के साथ प्रोस्टेट की परेशानी होती है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स के साथ प्रोस्टेट की परेशानी होती है उसके लिए एसिड नाइट्रिक इज द मेडिसिन, वो काफी अच्छा काम कर सकती है, वो दी जा सकती है। उसके अलावा जिनका पीएसए बढ़ा हुआ रहता है, पीएसए जब बढ़ा हुआ लेकर के आते हैं या डायग्नोस्ड केस वो
एडिनोकार्सिनोमा का लेकर के आते हैं तो हम उनको कंडूरंगो देते हैं। कंडूरंगो इज द बेस्ट मेडिसिन जिससे हम उनका PSA लेवल कम कर पाते हैं। कंडूरंगो के अलावा एक बहुत ही कॉमन सी मेडिसिन है होम्योपैथी की जिसको सैबल सारुलेटा बोलते हैं। काफी लोग जानते भी होते हैं कि सैबल सारुलेटा जो है प्रोस्टेट को कम करने की बहुत अच्छी दवाई है। सैबल सारुलेटा इज लाइक क्रोसिन एज इफ गिवन इन द फीवर। जैसे बुखार के लिए लोग क्रोसिन खा करके आते हैं, ऐसे ही प्रोस्टेट के लिए सैबल सारुलेटा लेकर के आते हैं। जब सैबल सारुलेटा से भी आराम नहीं होता है, देन दे अप्रोचेस अस, those who are senior physician, उनके पास आते हैं, तब हमारा उसमें स्कोप होता है। तो इस तरीके से सैबल सारुलेटा सब लोग लेकर के ही आते हैं। तो हमको उसके लिए देखना रहता है कि कॉज क्या है, किस कारण से उनको आराम नहीं आ रहा है, उसके लिए हमको काम करना होता है। और साथ ही ऐसे मरीज जिनको 2-2, 3-3 बार ऑपरेशन हो जाता है या फिर कई लोग उनको कैथेटर लगा देते हैं, फोलिस कैथेटर लगा देते हैं और तब हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा कैथेटर निकलवा दीजिए। तो ऐसे भी काफी केसेस में हमने काम किया है और थोड़े दिन 2 महीने 3 महीने होम्योपैथिक दवाई लेने से उनका कैथेटर निकल जाता है, उनका जो ब्लैडर टोन है वो काफी इंप्रूव हो जाता है और जो यूरिनरी ब्लैडर में उनका पोस्ट वाइड यूरिन रहता है वो बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाता है और अपने आप पेशाब कर सकते हैं। ऐसे ही ओल्ड एज में जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, जब 80 साल 90 साल का पेशेंट हो जाता है और खुद से पेशाब नहीं कर पाता है, तो उसके लिए सर्जन उनको सुप्रा पीवी कैथेटराइजेशन की सलाह देते हैं। सुप्रा पीवी कैथेटराइजेशन इज सेफर देन सेल्फ कैथेटराइजेशन। कई बार मरीज को यह समझा दिया जाता है यूरोलॉजिस्ट के द्वारा कि आप पतली सी वो रॉड डालिए या कैनाइन टी डालिए या उसमें से पेशाब के रास्ते में कोई वो दे देते हैं कि ये डालिए तो इससे आपका रास्ता चौड़ा हो जाएगा और आप पेशाब कर पाएंगे। उस उम्र में सेल्फ कैथेटराइजेशन बहुत कठिन होता है। तो जिनको भी सेल्फ कैथेटराइजेशन की सलाह दी जाती है, मैं ऐसे मरीजों या उनके रिश्तेदार को यह समझाना चाहता हूं कि मरीज को सेल्फ कैथेटराइजेशन के बजाय उनका सुप्रा पीवी कैथेटराइजेशन कराया जाना ज्यादा उचित है, ज्यादा सही प्रयास है। तो सुप्रा पीवी कैथेटराइजेशन कराने के बाद भी पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका सुप्रा पीवी कैथेटराइजेशन रहता है। उनको जब हम दवाई देते हैं होम्योपैथी सुप्रा पीवी कैथेटराइजेशन को हम बांध देते हैं थोड़े दिन के लिए, तो उससे धीरे धीरे नीचे से उनको वापस यूरेथ्रा से पेशाब होना चालू हो जाता है। इस तरीके के काफी केसेस हमने ट्रीट किए हैं और उनके वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि काफी सारा अवेयरनेस की जरूरत है। लोगों को प्रोस्टेट की परेशानी आजकल बहुत आम सी बात हो गई है। लोग मीटिंग में या ऑफिस में कई घंटे बैठे होते हैं और पेशाब को रोक करके बैठे होते हैं। तो जब रोक करके बैठते हैं तो उसके कारण उनका ब्लैडर का टोन कमजोर होता चला जाता है और उसका यूरिनरी टेंशन बढ़ते चले जाता है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आपको पेशाब रोकने की आदत है तो आप इस तरह की आदत नहीं पाले। हर थोड़ी देर में 3-4-5 घंटे में एक बार यूरिन जाने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा एक और कठिन परेशानी है, बार बार यूरिन होना केवल प्रोस्टेट की परेशानी नहीं है, शुगर की भी परेशानी है। और शुगर और प्रोस्टेट जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तब ये परेशानी सोने पे सुहागा जैसी हो जाती है, मतलब और परेशानी बढ़ जाती है। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा जैसा हो जाता है। एक तो उसको शुगर के कारण बार बार पेशाब हो रही है और दूसरा उसको प्रोस्टेट के कारण भी बार बार पेशाब हो जा रही है। तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती है और ओल्ड एज में वैसे ही मरीज को नींद नहीं आता है तो तीसरी और परेशानी बढ़ जाएगी। जब नींद नहीं आएगा तो हर थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब जाएगा, हर थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब जाएगा तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन भी होगा। तो इस तरह की जो समस्याएं लेकर के लोग आते हैं तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगा कि खुद से अपना सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करें। पेशेंट को डॉक्टर को सारी बात बताना चाहिए। डॉक्टर जब उसका सिम्टम्स के आधार पर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालता है, उसके आधार पर जब वो ट्रीटमेंट देता है तो उससे उसको काफी राहत हो जाता है। और प्रोस्टेट के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट बहुत वेल नोन है। मेरे पास काफी सारे लोग वो बटी वटी लेकर के भी आते हैं, उससे भी आराम नहीं होता है, तब वो होम्योपैथी से काफी सारा रिजल्ट पाते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अगर ऐसे कोई भी पेशेंट हो तो उनको एक बार नजदीकी होम्योपैथिक
चिकित्सक को सलाह लेने की सलाह दे सकते हैं। मुझे टाइम दिया शर्मा जी ने, उसके लिए मैं बहुत सारा आभारी हूँ आपका। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए भी आभारी हूँ। प्रोस्टेट पे कभी भी कोई भी सलाह हो तो उसके लिए आप मेरा नंबर भी दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऊर्जा से भरे हुए स्रोत के रूप में बोलते हैं, झरने की तरह फ्लो में बहते हैं, तो एकदम बिल्कुल सम्मोहन सा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद होम्योपैथी का पक्ष रखने के लिए। हम लोगों के लिए ये सब सीखने की चीजें हैं आपके डेफिनेटली। प्रेम के कारण है ना, ये सब आपके प्रेम के कारण है, बस निश्चल जय प्रेम जय। के कारण है। आपका आशीर्वाद मिलता रहे, हमें ऐसे ही चाहिए, इस मंच को आशीर्वाद देते रहे। थैंक यू, थैंक यू। मैं आदरणीय गुलामुद्दीन सोफी साहब से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने डॉक्टर फिरदौस को इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सोफी जी। अग्निहोत्री सर, द्विवेदी जी के लिए। यस सर, नमस्कार। अरे प्रोफेसर द्विवेदी, डॉक्टर द्विवेदी ने तो बहुत ही समा बांध दिया, बहुत बढ़िया बातें बताई। और एक चीज जो हमारे अपने साहित्य में, हमारे अपने लिटरेचर, हमारी अपनी साइंस में है, वो है वेग विधारण। अपार्ट फ्रॉम ऑल ट्रीटमेंट, जो उन्होंने ये कहा कि मीटिंग्स में रहने के कारण या किसी और कारणों से अक्सर मेल्स भी पेशाब रोकते रहते हैं, नहीं आ पाते हैं, और वो अल्टीमेटली ब्लड पर प्रेशर डालते डालते प्रोस्टेट को डिस्टर्ब करता है, और ये अवॉइड करना चाहिए। उन्होंने जो ट्रीटमेंट के जितने भी पोर्शन बताया, अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ सेल्फ ट्रीटमेंट करने का तो कोई मतलब नहीं है। हमेशा अच्छे होम्योपैथ को ही की शरण में जाना चाहिए। मैं अभी शिलांग होके आया हूँ, और वहां पर नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथ है, निया इसको बोलते हैं, NEIAH। और वहां पर फुल फ्लैश हमारा हमने देखा, होम्योपैथिक कॉलेज है, होम्योपैथिक की फैकल्टीज थी, हॉस्पिटल था, और बच्चे काम कर रहे थे। हालांकि कमी देख पाए, तो मुझे खुशी है कि हमारा तो आयुष में आप मौजूद हैं ही हैं। आप, हमारा आयुष का H तो आप ही आप हैं, और H तो हेड होता है, आप हेड हैं। क्या बात है, क्या बात। तो बताइए ना। तो इसलिए एच से हमको हेल्पिंग हैंड मिलता है। हेल्पिंग हैंड तो हमको मिल रहा है, हेड आप पे हेल्पिंग हैंड हमें मिल रहा है। और हम तो ए वाले हैं, तो ए तो हमारा अल्फाबेट पहला अक्षर है, कोई बड़ी बात नहीं, सब लोग सीख जाते हैं, लेकिन एच सीखना कठिन है। तो आपने हमने कुछ नाम नोट किए, लेकिन बिना प्रॉपर होम्योपैथ के नहीं उसको यूज करना चाहिए। और आपने बताया कि बटी भी खा के आते हैं, हमारे पास भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है, मैडम गुलनंदनी ने बताया, करता हूँ मैं तो, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जी, बहुत अच्छे। होम्योपैथिक बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आयुर्वेद के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, यूनानी के भी रिजल्ट्स हैं। इसीलिए हमारा ये रोज का रोज संगम समागम होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके फ्री फ्लो की तो क्या तारीफ करें, पवन जी ने कही दिया। अच्छा लगता है जब आप जुड़ते हैं। मैं आज कोशिश किया था कि PPT पे दूंगा, पर क्लिनिक से मुझे फुर्सत नहीं मिल पाई, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, आपकी आवाज ही पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद शर्मा जी। थैंक यू सर। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर फिरदौस अहमद नजर जी, introduced by Dr. Gulamuddin Sofi ji, and thank you Dr. Firdaus for inviting audience. हमीमुद्दीन साहिब नमस्कार, तौसीफ साहिब नमस्कार। मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर फिरदौस जी ने वो अच्छे इनवाइट किए। प्लीज डू ज्वाइन every day whenever you have time. Dr. Firdaus is associate professor from Department of Ilmul Jararat. I would like to ask him pronunciation of that department, from National Institute of Unani Medicines. Welcome. Okay. Thank you, sir. Thank you. Sorry for late link. Thank you, sir. Good evening, everyone, sir. Sir, am I audible, sir? Yes, your voice is very sound. Okay, sir. Am I audible, sir, now? Is it clear? Clear. Please continue. Okay, sir. Good evening, sir. My teachers are there, my seniors, and the organizers of this webinar. I will share screen, sir. I will share my PowerPoint presentation I have made for this
You can, sir. You Today is okay, sir. Okay, sir. Sir, I will, with your permission, I will start my presentation. Sure, sure. Okay. Sure, welcome. My topic is this benign prostatic hypertrophy and its treatment in the Unani system of medicine. So this benign prostatic hypertrophy is really an annoying condition for on the economy of the patient's economy of the society also. And I was hearing Mr. Dwivedi, Dr. Dwivedi, and he was very practical in explaining the so this benign, by definition, it is a gross or histological growth of prostate gland, glandular tissue, stromal cells, or both. It may or may not be associated with lower urinary tract symptoms or obstruction. While tracing literature for Unani, for BPH in Unani system of medicine, this condition in our literature. Rather, it has been the symptoms of mentioned in hello, am I audible, sir? Am I connect? Yes, you are audible. Okay. Yeah. Okay. Rather, these symptoms have been separately mentioned in our literature as the dysuria, osral bowl, anuria, dribbling of urine as taktirul bowl, and many more. Both the irritative and the obstructive symptoms have been mentioned separately. But while tracing the literature, this condition resembles a few conditions which are mentioned as bladder neck swelling or bladder outlet obstruction. We call them Varmi Anukul Masana and Insidadul Majra. By these conditions, by these two conditions, it is mentioned in our literature. Therefore, our Unani experts, while working on this prostate conditions and while such condition, one is the first one is Salai Godai Madi. Sala means, and therefore it is translated as non-malignant growth of prostate gland, or Varmi Godai Madi, swelling of the prostate gland. Varmi Godai Madi Sulb, a benign growth of prostate gland, prostatomegaly, simply prostatomegaly. According to its pathology, its pathology depends on the classical theory of humors. This theory of humors was given by Hippocrates, and there are basically there are 4 humors in our body, that is blood, yellow bile, phlegm, and black bile. These humors are present in a unique ratio in every human individual, and any disturbance in their equilibrium, either qualitative or quantitative, leads to the disturbance in the disease formation. And this equilibrium forms a unique temperament in every individual. That predominance of any of them, like predominance of blood makes yellow bile makes bilious, phlegm makes phlegmatic temperament, melancholic temperament.
these two, this sanguineous and yellow bile temperament, these are hot in nature, while as phlegmatic and black bile, this melancholic are cold in nature. According to Unani system of medicine, these hormones, the hormones, this pathology, this hypertrophy is the disturbed ratio between testosterone and DHT. So it strengthens our viewpoint that this hormonal disturbance is actually humoral disturbance, disequilibrium, which was suggested by our Unani scholars in our literature. Therefore, this equilibrium leads to the swelling at bladder neck, which we call Varmi Anukul Masana, either bladder neck swelling or bladder outlet obstruction. Sheikh Ibn Sina, the better known in Europe as Avicenna, in his book Canon of Medical Obstruction, in either in any obstruction which disturbs the passage of any liquid, they describe these obstructions of two types. When this pathology lies inside the lumen, or second, when the pathology lies outside the lumen. That outside lumen is called hudus gair ula. Means this urinary obstruction by prostate lies in this category, with the pathology lies outside the lumen, according to Avicenna. Further, the Avicenna has mentioned in his book that the swellings are of two types: hot and hard. Hot means warm, varmi har, and hard means varmi sul. Hard is called as cold swellings. Hot swellings are those swellings which are inflammatory in nature. They produce hot distemperament like a burning micturition, increased thirst, and fever, in addition to the obstructive urinary symptoms. But in comparison, the hard swellings usually develop after inflammation or due to wear and tear, or they produce hindrance in the urination. They lead to dysuria, anuria, and dribbling. But in such condition, in hard swelling, there will be no fever. Similarly, another Persian physician, Allama Jurjani, has mentioned the two types of swelling, that is hot swelling and cold swelling. And he also mentioned that this hot swelling is due to humors of hot temperament, which are blood and yellow bile. And cold swelling is due to humors of cold temperament, which are and black bile. By this discussion, we came to this conclusion that this hot swelling may be the prostatitis, the present day, which is mentioned in the conventional medicine as prostatitis, and cold swelling may be the treatment according to the Unani medicine is based in every condition on some principles. That is, one is elimination of the cause, second is correction of humoral equilibrium, and third is the normalization of organ or the tissue. This principle of treatment implies here also. For this, we have certain types of drugs which are used in prostatic hyperplasia or BPH. Those are categorized as deobstrucants or dilators, which we call mofetil,
and diuretics. Incomplete this retention of urine, diuretics have been avoided, strictly avoided. That don't use diuretics. These are certain drugs which are used here. I have written certain drugs which are used in such conditions, and there are many more drugs mentioned in our literature which have been used, which are used since centuries for this condition traditionally. And these drugs have been it has been reported that these drugs produce an anti-inflammatory, 5-alpha reductase inhibitor, and anti-tumor properties also. There have been certain studies, many studies on on Unani drugs on BPH conditions, prostatic hyperplasia conditions. Like there was a double-blind study, another double-blind study, another. Then there was a polyhormonal Unani formulation versus Urimex. It was also a double-blind study on BPH. Then Banadikul Buzur was a single arm tested in benign prostatic hypertrophy-like symptoms. Then one more herb, Erva lenata, this is called Biseri Booty. It was also tested in Varmi Guddai Madhi Sulub as a single arm study. In all these studies, the mean IPSS at the baseline was compared with the mean IPSS obtained after the completion of the treatment. Similarly, Euroflowmetry scores were compared before and after the treatment, and USG findings were also compared before and after the treatment of these studies. This is a table showing this double-blind study comparison of the treatment before and after the treatment of this double-blind study. First, this was a 12-month study. This is 4-month study and 3-month study. These are the results before and after the treatment, and all these are showing the results in percentage improvement, and this is the p-value. The result was the IPSS score was significantly improved in every study. Similarly, in Banadikul Buzur, we have seen the IPSS score improved, the condition of the this IPSS score improved in patients, and finally only 5 out of 25 patients, only 5 were left with severe IPSS score after the treatment of 42 days. Similarly, in the Euroflowmetry, there was seen improvement. Only 3 patients were left at the end of the treatment in the same study, which were having more than 30 ml this score there. And after this discussion, we will reach this conclusion that the drugs used in this trial, they showed improvement in the IPSS score and also in the Euroflowmetry values of the patients. Therefore, the quality of the patients improved simultaneously. There was reduction of the size of the prostate. However, it was minimal. By discovering these natural remedies, it will prove beneficial to the decrease the burden of the conventional medicine and surgery with their different possible side effects, and will improve definitely the quality of the life. Moreover, when we took these studies, and since then we are using these medicines in our daily OPD, and I am supporting this Dr. Dwivedi, who had been very practical. And similarly, we have many patients who were advised surgeries in different hospitals. When they came to us, our hospital, while we put them on the same medicines, and they have showed tremendous results and very much improvement in their this frequency of urine or dribbling or nocturia,
and finally they have been they are saved from the surgery, and they are still in our follow-up. Many such patients are in our follow-up. With this, I will conclude my topic. Thank you very much. Thank you for thank you inviting me in this seminar, giving me some time to share my views. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you very much. Ji. Thank you. Gulamuddin Sofi sir. Respected Gulamuddin Sofi sir. Yes, sir. Swagatam, Swagatam, Khushamuddin. Welcome. Please guide, please bless us on this lecture. Welcome, sir. Dr. Gulamuddin Sofi. Yes, welcome, sir. Thank you. Namaskar, sir. Namaskar to Agni sir also. And Thank all you the for- dignitaries who are with us. So basically, it was a very much a short time talk because we got this information just 2 days before. I request my colleague, Dr. Firdaus, and invitation. It was fruitful for this session. Here we, at National Institute of Unani Medicine, we try to seek various evidence-based approach to this benign hypertrophy, and using Unani medicine and trying to evaluate them whether they are really effective in BPH or not. Whatever the studies we have carried out here, it's almost 4 or 5 studies. We see that the symptoms, basically symptoms reduce, and there is improvement in the quality of life of the elderly people with BPH. Be it the case of uroflowmetry, or be it the case of ultrasound findings, or be it the case of this dribbling and this getting frequently for nocturia, for this frequent this urination during night. We see that this our various this medicine like Banadikul Budur, which is a tablet form of 5 or 6 ingredients, though it is very difficult to comply because its size is a bit greater, but it has a tremendous effect, and we are using it in regular basis for diuresis, as well as this we use it for this improvement in the quality of life for this BPH patients. Basically, we have this term BPH. We don't any space benign prostatic hypertrophy. But when we go for the literature, we just understand what are the various criteria on which BPH is BPH. Then we see which affects it most. There are 4 or 5 terms as stated by Dr. He told it out that it may be dysuria, it may be dribbling of urine, and it may be just after going properly for the urine, and various 2 or 3 more this symptoms. On the basis of those symptoms, we try to correlate which is the frequent and most frequent symptom for this benign prostatic hypertrophy, and then we study our drugs on that basis. But making these instruments like IPSS and then uroflowmetry, we take it into the consideration, and then we see whether it has the improvement or not. And here we are very much sure that there are certain drugs in Unani medicine which have good effect on the various symptoms of this benign prostatic hypertrophy. This is what we believe that this should be our approach. But the best one will be if there is a reduction in the size of this hyperplasia, and then there is improvement in other size. That will be the perfect drug. And for that perfect drug, we need to have all drugs which are which have the anti-tumor activity also. And for that, in Unani medicine, and I think in Ayurveda also, there are certain drugs which have these 2 effects
simultaneously. In our Unani medicine, we have this Arvalanata, what we call Bisferi booty. It has come into the Unani system from evidence based from Aligarh, and the trial was done in I think 1990, and that onwards we are usually using this in our daily routine basis in benign prostatic hypertrophy. This is what we have it in Unani this time, the present status, but literature is a bit very much lengthy, which we need to read, and then we see the inputs from the traditional literature, so that we can have much more precise research of Unani drugs. Thank you, sir, very much. Thank you very much, Sophie Sahib. इंट्रोड्यूस करने के लिए भी थैंक यू और आशीर्वचन देने के लिए भी थैंक यू. Now I would like to request Agnihotri sir for his comments. Namaskar, thank you, sir. I was just listening Dr. Firdaus, and I found that every pathy has got its uniqueness, and so he narrated by all his experience and the teaching details. One thing I could not follow, I may be wrong because I could not hear full sentence, that you mentioned somewhere that do not use diuretics, whether it was in relation to the hot swellings or something. I miss it. So I want to make it clear that where the diuretics are not allowed to use, please. Your voice is not, please unmute. You are muted. Please unmute. Yes, sir. Yes. It is mentioned in our literature that use deobstruents and diuretics also for this condition. But it's similar. Simultaneously, in this, it is written that if there will be complete retention, sedation, retention, yeah. Don't use diuretics at that moment. Very correct, because that will again increase the tension. Yes, that is over the bladder. Yeah, it is mentioned in our literature. Yes, make as soon as possible the evacuation of bladder. Yes, I got the point. That's why I underlined that point when he was informing this thing. I feel that I have missed something, some background. Thank you so much. In such conditions, our Unani scholars at that time, Unani physicians have advised the surgical management of such condition. Of course, suprapubic or anything. Yeah, just to drain out. At that moment also had in their books have mentioned, classical books have mentioned, go for surgical management at that moment. Something, is there any reference in your pathy that some pigeon beat is to be applied over the navel part, I mean the umbilicus, for making the evacuation of bladder? It is so hot in Tasir. It works something. Is there any literature available in your pathy? Which one, sir? Which one? Pardon? The beat, the beat of pigeon, the fecal matter of pigeon. Okay. That is dissolved in water and applied over the navel part of the sufferer, mean the patient, in the umbilicus. Okay. Out of its tasir, it affects like some warmth and force, and patient starts micturating. May it be a case of BPH or not? I have not come across this. Okay. That's why I put a question that maybe Dr. Sophie may be aware of these things. Yeah. Professor Sophie. Okay. Maybe yes, Professor Sophie sir, make it clear. Because it is from Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy somewhere, but it is in practice. And so many old ladies, they say if a person is traveling for 4 hours and having full bladder, but not in position to have a pressure because of the lack of the urdhvarti apanvayu. So for that purpose, Ingvasta churn, hing dissolved, maybe applied over the navel part. So goes the case with the vista of this pigeon. It is said. So, Professor Sophie sir, if you please have any idea? Yes, sir. It is in one condition even where we can use it because of spasmodic condition of the bladder muscle. If it is too much spasmodic and there is urine, if we apply this
feet of the pigeon, or we use corpora also, then it may get this Very correct. this So, is possible. thank you so much And- for enlightening us and making something very clear regarding this point, because it is a years old point in persons are, especially the old ladies are in practice always they inform like that. Thank you so much, sir. Over to Pawan Sharma ji. And thanks, Dr. Firdaus, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Firdaus, and thank you, Dr. Agnihotri, sir. Now I would like to request whether Sriram Sharma ji is there. Sriram Sharma ji है क्या? गैलेक्सी के नाम से Sriram Sharma ji जुड़े हैं क्या? Otherwise, I would like to request. आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही, स्वागत है, स्वागत है। ओम गुरुदेवाय नमः। वो आपका जो मैंने भेजा था वो तो आप स्क्रीन पे लगाइए। आप तो बोलिए ना, आप बोलिए ना, मैं लगा रहा हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रोफेसर पवन जी आज के इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए, और प्रोफेसर अग्निहोत्री जी, मैडम गुणरत्ने जी, महेश शर्मा जी, विष्णु प्रसाद शर्मा जी, सभी को नमस्कार। अब आज जो ये वेबिनार आयोजित की गई है, इसमें सभी विद्वानों ने अपने अपने अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं। ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा सा बड़ा साइज हो तो मैं इसको, इतना ही आएगा क्या पवन जी? जी सर, जी सर। इससे ज्यादा थोड़ा क्लियर नहीं आ पाएगा? आ जाएगा। जूम करिए ना, जूम करिए, सब पढ़ने वाला है। ओम जलंधराय नमः, ओम शांतिनाथाय नमः, सब आ रहा है। नहीं, जूम ये व्हाट्सएप में है सर, जूम नहीं हो रहा है। अच्छा व्हाट्सएप पे है, जूम तो हुआ। व्हाट्सएप का है। पहले आप तो दर्शन दीजिए। नहीं सर, एक्चुअली जो प्रैक्टिकली जो देखा गया उसमें प्रोस्टेट की समस्या तो पूरे संसार में ही है, और माधव निदान में तो मूत्राघात के नाम से इसको वर्णित किया गया है। और इसका निदान में जहां तक देखते हैं तो मूत्राघात में जब किया है तो जहां भी आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं कि पेशेंट को जो यूरिन में जलन है या रुकावट है, या रात के टाइम उसको 3-4 बार पेशाब जाना पड़ता है, तो इस समस्या के लिए रोगी हमेशा किसी न किसी चिकित्सक के पास जाता ही है, चाहे वो एलोपैथी का हो, आयुर्वेद का हो, होम्योपैथी का हो, यूनानी का हो। अब चिकित्सक अपना ये देखता है कि उसका जो रोगी की समस्या है उसमें वो कितना सफल हो पाता है, या वो कितना काम करता है। तो अपन ने जब देखा है कि ये कारण वेगावरोध का भी है। अब वेगान न धारित वात विणमूत्र छवताम निद्रा का श्रमश्रु चलती रेसाम। अब वात का अनुलोमन ना होने के कारण से भी कई बार समस्या आ जाती है। अब वात के अनुलोमन से ही अब जितना भी पूरी यूरिन है चाहे स्टूल है, सारा ही वात के वेग से ही बाहर जाता है। अब वात के अनुलोमन ना होने से कारण से भी कई बार समस्या इसमें आती है। और पेशेंट जब रात को 2-3 बार जब जगता है तो उसकी निद्रा भी डिस्टर्ब होती है, और वेगावरोध के कारण से भी उसको परेशानी होती है। लाइफ स्टाइल की भी ये समस्या है। तो अब अपन ये देखते हैं कि इसमें प्रभावी जो जैसे रोगी डायबिटिक है या हार्ट पेशेंट है और किसी परिस्थिति में जो ऑपरेशन नहीं कराते हैं, तो आयुर्वेद मेडिसिन को यूज करनी चाहिए। और उस मैनेजमेंट में जब अपन आते हैं तो आयुर्वेद मेडिसिन में इस प्रोस्टेट की समस्या में जैसे सिस्टाइटिस है, मैंने एक पेशेंट देखा था तो उसमें सिस्टाइटिस की समस्या, उसको इवन देन वो 74 है, फिर भी उसको आज की तारीख में प्रोस्टेट इतना इलाज नहीं है, सिस्टाइटिस की समस्या जरूर है। तो उसको टैबलेट सिस्टोन का जो कॉम्बिनेशन है वो उसको यूज किया है, जो उसको काफी फायदेमंद हुआ है सिस्टाइटिस में भी। अब अपन ये देखते हैं कि जो 2 तरह का है, एक तो बिनाइन प्रोस्टेट है जो कार्सिनो के लक्षण जिसमें नहीं है, और एक कार्सिनोमा का है
तो इसमें बिनाइन जो है प्रोस्टेट है, उसमें जो मेडिसिन है वो गोक्षुरादि गुगुल, हिमप्लासिया, कांचनार गुगुल, व्रतवादिकावटी, शिला सिंदूर, वंशिल, वोल्टेज, यूराल बीपीएच, ये सारी मेडिसिन उसमें काम आती है। अब ये चिकित्सक का विवेक है कि वो चिकित्सक कौन सी मेडिसिन, कौन सी उसको कॉम्बिनेशन में देता है। लेकिन ये निश्चित रूप से सही है कि प्रोस्टेट की इस समस्या में जब पेशेंट परेशान रहता है, तो जब वो आयुर्वेद को चुनता है और आयुर्वेद के चिकित्सक के पास आता है कि मुझे तो आपसे ही मेडिसिन लेनी है, तो निश्चित रूप से हमको आयुर्वेद प्रेस्क्रिप्शन में गोक्षुरादि गुगुल, हिमप्लासिया, कांचनार गुगुल, व्रतवादिकावटी, शिला सिंदूर, वंशिल, फोर्टेज, यूराल बीपीएच का ही इनमें से चयन करके ही उसको देना चाहिए। मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे आए थे जो मेडिकल कॉलेज में जाके आए और मेडिकल कॉलेज से जब लेके आए तो मुझे कुछ मेडिसिन फ्यूरीमैक्स वगैरह या कुछ ऐसा उसने लिया था, तो वो परेशान होने लगा। उसने कहा कि मुझे इस मेडिसिन से मैं इजी नहीं हूँ, अनइजी हूँ और आप आयुर्वेद ही प्रेस्क्राइब कीजिए। तो अपनी मेडिसिन ये जो मैंने प्रेस्क्राइब की है, अभी बताया है, इनके देने से 3 महीने से उनको बिल्कुल बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं उसमें। क्योंकि जो क्लेद है, मसल्स की जो जहाँ मसल्स उसको प्रेशर करके और यूरिन को एनिमित करते हैं, कभी कम आता है, कभी ज्यादा आता है, कभी धार उसके बराबर नहीं बनती है। तो ये सारी मेडिसिन जो है लेखन कार्य करती है और लेखन कार्य में करने से वो पेशेंट का पेशाब इजीली पास हो जाता है या उसको जो समस्या वेरिएशन की रहती है वो नहीं रहती है। तो इन लोग ये एक ये है वाताशिला का। अब उसमें आपनों को देखना है कि जो नॉन कार्सिनोमा के जहाँ अपने को लक्षण मिलते हैं और पेशेंट को जब प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाती है और कार्सिनोमा के जहाँ देखते हैं तो भाई यहाँ उसने जहाँ भी बायोप्सी कराई है या उसका जांच जितनी भी करा दी है और वो एनलार्जमेंट देख लिया है, तो वो उसमें हमने हीरक भस्म का प्रयोग देखा है, क्रूएल कैप्सूल का भी देखा है, टैबलेट एनाकार्सिन, शिला सिंदूर, अब्रक भस्म, कांचनार गुगुल, व्रतवादिकावटी, पुनर्नावादी मंडूर इत्यादि का जब प्रयोग किया तो उसमें रिजल्ट मिला है। अब पेशेंट कितना लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाता है तो एक निश्चित रूप से नहीं कह सकते। मेटास्टेटिस कंडीशन जब तक नहीं हो पाती है, मेटास्टेटिस कंडीशन होने के बाद में तो पेशेंट सर्वाइव बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाता है। लेकिन जब अपन ने मेटास्टेटिस कंडीशन नहीं है और ये मेडिसिन देनी शुरू की है तो निश्चित रूप से उस पेशेंट को आराम मिलता है और पेशेंट को राहत मिलती है। अब रोगी के कई बार इसमें एक और भी समस्या आती है, बाथरूम तक जाते जाते ही कई लोगों के यूरिन पास हो जाता है। ऐसा मैंने एक दो चार नहीं, कम से कम 20-25 पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनके बाथरूम तक जाते जाते यूरिन पास हो जाता है। तो उसमें जब देखा कि भाई प्रोस्टेट के लक्षण ज्यादा नहीं है तो भी उसका ऐसा परिस्थिति है, तो गोक्षुरादि गुगुल का इन दिस कंडीशन ऑफ सिस्टाइटिस में तो सिस्टोन टेबलेट यूज किया है, लेकिन इस कंडीशन में जहाँ यूरिन पास बाथरूम तक हो जाता है वो गोखरू काढ़ा जो यूज अपने किया उसका अच्छा प्रयोग देखा हमने। अब इनमें लगभग जो प्रोस्टेट की समस्या में गोखरू, पूतीकरण, शतावरी, वरुण, हकीक पिष्टी, बबूल और कुलत्थ, इन सबका जो संयोग है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, उसके प्रयोग से बहुत सारे पेशेंट किए देखे प्रोस्टेट के जब ओपीडी में अपन ने देखे हैं। तो ये कुल मिलाकर के यही बात है कि इस समय जो दिनचर्या जो है वो ऐसी डिस्टर्ब हो गई है कि एक कमरे में ज्यादा 15-20 फुट से ज्यादा वो चलने 30-40 फुट ही घूम पाता है। यहाँ बाथरूम है, यहाँ रसोई है और यहाँ सोने का कमरा है, तो उसके चलने फिरने का भी इतना नहीं हो पाता है। 2 किलोमीटर अगर घूम के आ जाए या तो भी उसको थोड़ा सा श्वेत भी पास होगा, यूरिन भी पास होगा और अग्नि भी बढ़ेगी। अग्नि अगर सम्मित नहीं है तो अग्नि अगर सम्यक नहीं है तो भी उसका डिस्टर्ब होगा। तो वेगावरोध भी इसमें कारण है, अग्नि का सम्यक नहीं होना भी कारण है। जैसे भगवान कहते हैं कि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित है प्राणपान समायुक्ते पचामीनम चतुर्विधम। जब वो अन्न का पाचन करते हैं तो जल का पाचन भी करते हैं, अन्न के साथ जल भी जाता ही है और जल का पाचन, अन्न का पाचन, ये सारा सम्यक रूप से होता है
तभी व्यक्ति स्वस्थ कहला पाता है। जैसे मूल जो अपना उद्देश्य है, समदोष है, समाग निश्चय, समधातु मल क्रिय, प्रसन्नात्मेत्रिय मना स्वस्थ विधीयते। अब स्वस्थ, ये स्वस्थ है तो उसमें वात पित्त कफ की अनियमितता ही, वात पित्त कफ का बढ़ना, अनियमित होना, धातु का अनियमित होना, समदोष है, समाग निश्चय, सम धातु मल क्रिय, मल मूत्र इत्यादि क्रिया का डिस्टर्ब होना, उसमें ये यूरिन का आ गया मूत्राघात में। तो मूत्राघात के का जो लक्षण माधव निदान में, चरक में, सुश्रुत में जो निदान लिखा है, उसमें सारा वाताष्टिला का भी लिखा है, जो बिनाइन ये एनलार्ज है प्रोस्टेट। तो इसमें अपन जितना मैंने बताया, गोखरू का, पूतिकरंज का, शतावरी का, वर्णु का, किष्टि का, ये सारा उपयोग है। और आप सब लोगों ने बहुत सारी डिटेल बताई है, तो मैं तो आप सीखने वाले में लोगों में से हूँ, आप लोगों से। तो धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे। ओवर टू प्रोफेसर पवन जी, अग्निहोत्री जी, सभी को नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वैद्य जी, आदरणीय वैद्य श्रीराम शर्मा जी को नमन। उन्होंने बड़ी, वो रोज मैं उनको देखता हूँ, हर सोशल में बहुत अच्छे एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर। और उनमें एक बड़ी सरल बात है, बहुत ही महान बात है कि वो अपनी सरल भाषा में नुस्खों को कम्युनिकेट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन। ये एक आप में बहुत अच्छी बात है सर। डॉक्टर साहब, मेरे को कुछ बच्चों ने ऐसा कहा था कि ये जो जितने पुराने वयोवृद्ध चिकित्सक हैं, ये सब अपना सारा ज्ञान लेके चले जाएंगे, कोई बांटेंगे नहीं। इसलिए मैंने वो सारा ही जितना भी कुछ अपने अनुभव है, कुछ लोगों से सीखा है, वो सारा ही लोगों को बांटना शुरू कर दिया है। बांट दिया बहुत सारा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू। यही आभार, मतलब आप जैसे लोग ही माइलस्टोन है सर जिंदगी के। थैंक यू, नमन आपको। अग्निहोत्री सर। नमस्कार सर, नमस्कार। वैद्य राम शर्मा सर, ऐसा है ना, आपने कितना भी बांट दिया हो, लेकिन आपके पास से कुछ नहीं गया है। आपका संग्रह, आपके धरोहर आपके साथ यथावत है। ये तो वे वर्धते पि नित्यम, यही तो चीज है जो आप बांटते जाइए, फिर भी आपके पास से खलास नहीं होने का, और लाभान्वित होंगे वो सारे के सारे बुभुक्षु विद्यार्थी, अध्यापक, चिकित्सक, जितने भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और ये सही बात है, अब प्योर आयुर्वेद के बारे में बताने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, और वो भी उनको इस कमसे के दोषों के अंशांश कल्पना करते हुए, ये समझाते हुए, संप्राप्ति विघटन कराते हुए कि किस दोष का विकारग्रस्त हो चुका है, किस पर आवरण है, तो कैसे हटाना है, कौन से क्रम से चलना है, दोषों का अंशांश कल्पना करके जो चिकित्सा कर्म पूर्व के वैद्य लोग जो पाठशालाई ज्ञान से युक्त थे या नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से अनुभवी ज्ञान से बहुत ही अधिक ओतप्रोत थे, और उस सिद्ध परंपरा में उन्होंने बहुत ही यश कीर्ति हासिल कर रखी थी। तो वो सब चीजें आप सबके साथ में हैं, तो अच्छी बात है। उनको मुक्त हस्त से बांटिए, और हमारे वेबिनार से भी जुड़े रहिए। हमारी तो आकांक्षा यही है, जिससे कि हम लोग भी लाभान्वित होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार शर्मा जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर। अब सेशन ओपन है, तो ओपन सेशन की शुरुआत में महेश शर्मा जी से करना चाहता हूं। बाकी मॉडरेटर का दायित्व तो मैं अग्निहोत्री जी को सौंपता हूं ओपन सेशन के लिए। स्वागतम सर। स्वागतम महेश जी, स्वागत। हाँ डॉक्टर, नमस्ते, धन्यवाद। हरिओम। डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोस्टेट आप दिन ब दिन यंग लगते जा रहे हैं। मैं तो पहले तो मैं कह दूं, आप दिन ब दिन यंग लगते जा रहे हैं। जय हो। रिटायर्ड पर्सन हूँ सर। मालूम है मुझे, नहीं लग नहीं रहा कहीं से। अपने प्रोस्टेट का वर्णन बृहत्तरी लघुत्तरी में नहीं मिलता है। इसका मतलब ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकते हैं, और अपने अपान वायु और समान वायु की विकृति इसमें होती है। अपान वायु मल और मूत्र का निर्वहन करती है, समान वायु उसका धारण करती है। समान अंतरग्नि समीपस्थ तत्संदुक्षण पक्वामाशय दोष मल शुक्रार्थ वाम्बु वह है, इसका वहन करती है समान वायु, और निर्गमन करती है अपान वायु। तो अपान वायु और समान वायु को ध्यान में रखते हुए, और लाइफस्टाइल के अंदर आजकल जो खड़े खड़े पेशाब करते हैं, इसके कारण से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो मेरा ये अनुभव है कि एरंड भ्रष्ट हरितकी का नित्य सेवन किया जाए और बैठकर पेशाब किया जाए, तो ये प्रॉब्लम शायद नहीं हो। अग्निहोत्री जी, आपकी क्या राय है इसमें?
बहुत बढ़िया बात बता दी आपने, अपने को यहाँ पर लिमिट किया। मैं तो समझ रहा हूँ कि ये बैठकर पेशाब न करने से हर्निया के रोग के बारे में बहुत चर्चा की गई है कि हर्निया इस चीज से होता है कि हम बैठ के पेशाब नहीं करते। तो सही बात है, अपनी व्यवस्थाएं और अपना लाइफ माने तरीके जो ग्रंथोक्त हैं उनका अपमान करना ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। एरन ब्रस्ट का इसमें अच्छा रोल है, वो अपान वायु को ऊर्ध्व नहीं होने देती है। एरंड क्या बताया आपने? एरंड सिद्ध, एरंड भ्रष्ट हरितकी, एरंड भ्रष्ट हरितकी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसका नित्य सेवन करें तो ये प्रॉब्लम बहुत मतलब आएगी नहीं, प्रिवेंशन में ये काम आ जाएगी। नहीं, थोड़ा आप ये और बताइए कि जैसे ये प्रोस्टेट 40 साल के बाद सोचते सुनते थे तब तो बन जाती थी, अभी जो 20-25 साल की बात इन्होंने बतलाई, द्विवेदी जी ने बताई थी, तो उस क्रम में मैं समझता हूँ ये और ज्यादा लागू होना चाहिए कि बैठ के पेशाब करने का तो मतलब ही नहीं, टाइट जीन्स पहनना और लगातार 20-25 किलोमीटर एक साइड से बाइक चलाना। बाइक पर पेरिनियल रीजन और ज्यादा कंप्रेस रहता है, इधर से प्रेशर डाल रहा है यूरिन जो कि ब्लड में भरी हुई है, और नीचे से पूरी जो हमारी पेरिनियल रेफी है वो पूरा इलाका दबा हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का जीवंत उदाहरण हो गया कि इस वजह से जो जैसे कि कंप्यूटर के लिए कहा कि 20-20-20 का फॉर्मूला दे दिया कि 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड का रेस्ट लेना है, 20 फीट दूर देखना है। तो इसका भी कोई रेमेडी बता दीजिए कि 5 किलोमीटर चलने के बाद या कुछ करने के बाद कहीं पर अब वो जीन्स पहने हुए तो बैठ के पेशाब कर ही नहीं सकते। एक और समस्या है, पैजामा धोती या कम से कम लूज वाली पैंट हो तो आदमी एक बार कर सकता है। दूसरे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत रोड साइड कहीं पर बैठ नहीं सकते, और बड़ी जगह जाएंगे तो 5 रुपए सुलभ शौचालय वाला लेगा। तो इस चक्कर में 40 किलोमीटर तक दबाए हुए चले जाते हैं। नतीजा जो है कि वो फिर कम उम्र में भी प्रोस्टेट शुरू हो गया। तो हम सब लोगों को इस बारे में अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल में पहले लंगोट बांधते थे, धोती की लांग बांधते थे, जी वो भी बहुत अच्छा काम करती थी, आजकल वो भी खत्म हो गया। लांग बांधना, कांच लगाना, जिसे बिल्कुल दो हमारे पेल्विस रीजन को कायदे से प्रोटेक्ट करते थे। हाँ बिल्कुल, वही अगली संतति के लिए व्यवस्था स्थापन का संसाधन था वो इलाका, और उसको कर रहे इग्नोर। लो वेस्ट पैंट पहन के जहां पर हिप्स हैं उसके नीचे वो वॉलेट रख देते हैं, मोबाइल रख देते हैं, सारा तो रेडिएशन वहां से हो रहा है आगे से। नहीं, बहुत विचारणीय विषय। हम जब भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बात करते हैं तो ये सब चीजें अभी तो आई हैं, पहले तो नहीं थी। 40 साल 50 साल पहले इस टाइप दिक्कत तो नहीं थी। प्रोस्टेट का जो बढ़ना हुआ है, सीए का जो बढ़ना हुआ, रेडिएशन जन्य व्याधियां हुई, इसी पे हुई हैं। तो आज तो हमारा टॉपिक प्रोस्टेट पर ही है। एक वेबिनार लाइफस्टाइल पे भी रख लीजिए सर। नहीं होती है, वो तो होती रहती है। नहीं, आप आज प्रोस्टेट से जुड़ी और बातें बताइए कि किस तरीके से अपान वायु को निश्चित रूप से अधोमार्गी ही रखा जाए। उसके क्रम में से हिंगोस्टक चूर्ण हो गया, लसुनाज बटी हो गई, ये थोड़ा, या लीफी वेजिटेबल्स हैं। अनुलोमन में सर्वश्रेष्ठ हरितकी है। हरितकी, बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरितकी सदा पथ्या मातेव हितकारिणी। और एक बात और साहब, अन्नपान कृतान दोषान वात पित्त कपोद्भवान हरितकी हरत्यासु भुक्तस्यो प्रयोजित है। खाना खाने के बाद हर लेंगे तो वात पित्त कफ से उत्पन्न कोई भी दोष बढ़ेगा ही नहीं। बोले संचय, प्रकोप, प्रसव, स्थान संचय, व्यक्ति और भेद, तो प्रकोप तक वो दोषों को आने ही नहीं देगी। संचय अवस्था में ही उसको कंट्रोल कर लेगी, दोषों का संचय अवस्था में कंट्रोल करेगी, प्रकोप होने नहीं देगी। प्रकोप जब दोषों का होगा ही नहीं तो व्याधि होगी ही नहीं। यही सच्चे अर्थ में यही वैद्य की जो पहुंच थी, अप्रोच थी, वो यही थी कि हम संचय को ही दूर कर दें और नौबत अंशांश कल्पना के अनुसार चिकित्सा करने के आए ही ना, हम स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखें। यही उसमें अप्रोच रही थी। आपका बहुत बहुत ही आभार विशेष रूप से इस ज्ञान सहयोग के लिए, क्योंकि ये इसका 10% भी अगर अभी हम लोग भी और हमारी नेक्स्ट जनरेशन मानना शुरू कर दे, जिस पर कि अब जोर दिया जा रहा है, हर कोई अब छोटी मोटी चीजें मीडिया, सोशल मीडिया के बल पर तो ला रही, चाहे तुलसी विवाह हो, चाहे आने वाले बहुत सारे सनातन धर्म के या परंपरागत जो कार्यक्रम थे उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। बता रहे हैं ये वागू और मंडपेया विलेपी अब ट्रेन में मिला करेंगी, इस तरीके से ट्यूशन आएंगे, तो लोग झुक तो रहे हैं। और रिसर्च तो ओम उच्चारण पर और शंख ध्वनि पर भी हो ही रही है। तो ऐसे ही हमारे सभी लाइफस्टाइल पर बातें होंगी तो हम बहुत सारे रोगों से मुक्त हो सकेंगे। आपका बहुत बहुत आभार।
और आप आया करिए, जुड़े रहिए। नमस्कार इन्वेस्टर का भी रोल अच्छा रहेगा जी। नमस्कार। प्रथम कवल भुक्तम सर्दिशा चूर्णमेत जनयति चार्त्राग्नि वात रोगान संन्याति, सभी वात रोगों के लिए उत्तम है। तो भोजन से पहले इन्वेस्टर, भोजन के बाद हरितकी जी, इसके प्रिवेंशन के लिए अच्छा रहेगा। बहुत सही, बिल्कुल सही है। जिससे हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर शुरुआत में आराम से लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए और आया करिए आप। बराबर आऊंगा, आप मेरे को लिंक जरूर भेजते रहिए। जी जी। और नेक्स्ट 10-15 दिन के जो टॉपिक्स हैं वो हमें पहले पता लग जाए, थोड़ी हम तैयारी कर लें। आप पवन जी से आपको लिंक भेज देंगे, पूरे नवंबर महीने का उन्होंने भेजा हुआ है। उसमें आपने को स्थान पाइए कि कहाँ पर कौन से दिन और कौन से विषय पर आप अपना चर्चा प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो अभी है समय, आप उसको करते अपना कंफर्म कर दीजिए। हाँ हाँ जी, पवन जी आपको भेज देंगे, आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। मैं अब बहुत ही आदर के साथ में प्रोफेसर सीवी झा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वचन के तौर पर और उनके इस जो प्रोस्टेट के तौर पर जो डिसऑर्डर बना है उसमें अपने अनुभव से कुछ आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अपने आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि हम इस संबंध में चिकित्सा कर्म किस रूप में और अधिक सफल रूप से कर सकते हैं। प्रोफेसर सीवी झा साहब, प्रणाम गुरु जी। नमस्कार सभी लोगों को। आवाज आ गई आपसे। जी जी। काफी विस्तार से प्रोस्टेट के बारे में विचार सुनने को मिला और और यूनानी तीनों विधा से थोड़ा सा अगर पीछे पलट के जाए तो करीब करीब 40-42 साल पहले, ये 1974 की बात मैं करूँगा। जामनगर में हरिशंकर जी के अंडर एक प्रोस्टेट पर कार्य हुआ, जो एक काढ़े का प्रयोग किया गया था। वो काढ़ा क्या था, तो ये जो मकई जिसको कॉर्न, हाँ, तो कॉर्न सिल्क, मकई का भुट्टा निकलता है, उसमें से कुछ रेशे बाहर निकलते हैं, मकई का मूंछ ऐसा करके करते हैं। उसके काढ़े का प्रयोग पेट के BH बेनाइन हाइपरट्रॉफी के पेशेंट पर किया गया और बड़ा ही अच्छा परिणाम उसका देखने को मिला। करीब करीब हमें लगता है कि 51 पेशेंट पर काढ़े का प्रयोग किया गया। इसके बाद उसी को, चूंकि हर सीजन में उसे मिलता नहीं था, आजकल मक्की तो सीजन में उपलब्ध होता है, जहाँ तहाँ देखा जाता है कि खेती भी इसकी पहले वर्षा के सीजन में होती थी, आजकल विंटर सीजन में इस खेती होती है। तो सबसे मुख्य है कि ये मटेरियल ऐसा है कि अगर हम सतर्क रहें और उसको इकट्ठा कर लें तो तब तुरंत होगा, नहीं तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बाजार में जैसे रॉ मटेरियल और सारे मिलते हैं, इस तरह से ये प्राप्त नहीं होता है। हुआ कि भाई इसको आशा वरिष्ठ के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाए, जो हमेशा हर जगह आदमी इसको उपयोग में ले सकता है, उपलब्ध किया कराया जा सकता है। तो इसका आशा वरिष्ठ भी बना दिया गया। हरिशंकर जी के द्वारा इसका नामकरण भी किया गया था, वो महायावनाल के नाम से। महायावनाल क्वाथ, फिर महायावनाल रोम सर, महायावनाल रोम शार। हाँ, तो उसके बाद जाकर के फिर महायावनाल सिंह जी के अंदर हाँ यावनाल रोम के क्षार का उपयोग फिर लोगों ने किया और सबका परिणाम अच्छा खासा देखने को मिला। जैसे इस द्रव्य को अगर सामने हम रखते हैं तो चूंकि इस पर काम हुआ, इसलिए लोगों के नॉलेज में आना चाहिए और व्यवहार में अगर ले सकें तो शायद रोगियों के हित में ज्यादा श्रेयस्कर होगा। लेकिन वैसे जो
एक आयुर्वेदिक चिकित्सा के रूप में प्रचलित दवाएं हैं, उनकी चर्चा भी आई। गोक्षरादि गुगुल है, पुनर्नवादि गुगुल है, काचनार गुगुलू है, फिर वरुणादि क्वाथ है। बनारस में वरुण सिग्रू क्वाथ खूब फ्रिक्वेंटली उपयोग में लिया जा रहा है और बड़े अच्छे उसके परिणाम है। पेशेंट बराबर बताते हैं कि नहीं मुझे इससे अच्छा लाभ हो रहा है। तो वास्तव में प्रोस्टेट का तो मूत्राघात और अस्थीला प्रतिष्ठिला ये सब जो भी है वही। ये अस्थीलावद ग्रंथि मूत्र मार्गावरोधिनी, अस्थीला की सघन ठोस ग्रंथि ये होता है और मूत्र मार्ग को अवरुद्ध करता है। इसमें सबसे बड़ी जो एक प्रारंभिक लक्षण लोगों में देखने को मिलता है कि मूत्र वेग को रोकने में असमर्थता। अब वो एक साधारण लक्षण के रूप में शुरू होता है कि जैसे अनुभूति हुई कि मुझे मूत्र त्याग के लिए जाना चाहिए, और आदमी जब तक मूत्र त्याग के लिए पहुंचता है तब तक पता चला कि कुछ मूत्र अपने आप बाहर निकल आता है। और खास करके रात्रि में मूत्र त्याग की संख्या बढ़ती चली जाती है। प्रारंभ में वो जैसे 2, 3, 4, और इसके चलते जो नींद में बाधा होती है, तो इन सब से रोगी काफी असहज महसूस करने को। तो खास करके जो 45 वर्ष की अवस्था के बाद की व्याधि, विशेष रूप से कम अवस्था के भी पेशेंट लोगों को मिलते हैं, चर्चा में बात आई। तो यह है परिहानी काल की व्याधि, वृद्धावस्था की व्याधि, और एक तरह से अत्यंत ही मतलब जैसे टीज करने वाला ये कंडीशन हो, इस तरह का। तो इसके बारे में बड़ी अच्छी चर्चा रही। पवन जी को मैं साधुवाद देता हूँ, और अच्छे अच्छे जो चिकित्सा के तरीके हैं, औषधियाँ सब सुनने को मिला। तो मैं इन शब्दों के साथ ठीक है पवन जी को धन्यवाद देता हूँ, और आगे चले। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने बढ़िया याद दिला दिया। ये जो भुट्टे के बाल जो कहते थे, इनको उबाल के पीना, इनका काढ़ा बनाना, देखिए वही ना, पुराने ग्रंथ और पुरानी काम की बातें पुराने लोग ही बता सकते हैं। अब चूंकि ये साइंटिफिक हो गया, इसको प्रोफेसर गुरुजी वैद्य शंकर शर्मा जी ने इस पर ट्रायल भी करा लिया। 4-5 थीसिस लिख गए, हाँ, एमडी लेवल के। जी बताइए। और इसको तो लोग सिर्फ फेंक देते हैं, छिलका फेंक दिया, वो भी फेंक देते हैं उखाड़ के, भुट्टा भून लिया, खा लिया। और आजकल तो बेबी कॉर्न आ गया है, वो बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में शाही सब्जियों में काम आता है, और इसके मूल रूप से इसको डिनेचर्ड करके इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि नेचर इसकी यहाँ पर हमको रोग विनाशक अपने प्रभाव देती है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपके इस द्रव्य को प्राप्त करने के लिए विभाग के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लगाया जाता था कि तुम पूरे शहर का एक चक्कर लगाओ, हम लोग घूमे जहाँ भुट्टा भूनने वाले हैं। सर हम लोग घूमे, और क्या आपने तो काम किया है। नहीं, नामदार शर्मा जी का ये रिसर्च था। हम लोग फर्स्ट ईयर में गए तो सब सब्जी मंडियों में जाके बोलते थे, भैया भुट्टा तुम बेच देना, बाल तुम रख लेना। ऐसा कर करके तो शुरू में गोल्डन प्रारंभ में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसके लिए नियुक्त होता था। अब वो पूरे शहर में साइकिल से चक्कर लगाता था, और जहां जहां भुट्टा सेकने वाले लोग होते थे उन सबको अपना लोकेट किए हुए उनको बोल देता था कि भाई पैसा लेना हो तो पैसा ले लेना, फेंकना मत इसको, तुम भुट्टा अपना सेको, बेचो, इसको सुरक्षित रखो, मैं आऊंगा और तुमसे लेकर के जाऊंगा। और इस तरह से वो प्रतिदिन चक्कर लगा करके करीब करीब समझ लें कि आधा किलो 1 किलो वो इकट्ठा कर लाता था। जो पेशेंट वार्ड में एडमिट होते थे उनको उसका काढ़ा बना करके उपलब्ध कराया जाता था। तो इस तरह से चूंकि नहीं अगर जानकारी है
और नहीं पहले से सतर्क रहे तो ये द्रव्य उपलब्ध होना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से इस पर कार्य किया गया था शुरू में, और चूंकि मेरे सीनियर थे काम करने वाले, तो मैं बराबर उनके साथ रह करके देखता था कि कैसे दिया जाता है। और करीब करीब जो परिणाम थे उसमें कार्सिनोमा तक के, जो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के पेशेंट थे, उन सब में भी लाक्षणिक बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता था। और करीब करीब जो स्टैटिस्टिकली समझ लें कि 78% इसका लाभ लोगों ने घोषित किया था उस समय। तो इस तरह का एक्शन इस द्रव्य से हम लोगों ने देखा। धन्यवाद। ठीक है सर। सर उस जमाने में तो बड़ी सीमाएं थी ना, मेज की जो हाँ, नहीं, बहुत थी, जांच के अल्ट्रासाउंड ये सब नहीं होता था उस समय। हाँ वो भी नहीं पीआर करके, हाँ, और पीआर करके पररेक्टल एग्जामिनेशन करके प्रोस्टेट का साइज वाइज जो भी किस लोब में क्या इनलार्जमेंट है ये सब तय करते थे। तो बहुत सीमित उस समय सुविधा थी। धीरे धीरे सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं। आजकल अल्ट्रासाउंड करके आप साइज वेट सब मालूम कर लेते हैं प्रोस्टेट का। सर ऐसा ना, अब खरीफ की फसल में मेज और बाजरा ये सब मिल जाता था उस जमाने में। सीजन बाउंड आपने कहा ना, समय मिलता नहीं, लेकिन आज की तारीख में तो सीजनल अनसीजनल हर चीजें आ रही हैं। और जो ठंडे प्रदेश है वहां से भुट्टे के लेके 12 महीने फेंकते ही रहते कूड़ा, बल्कि म्यूनिसिपैलिटी के लिए कूड़ा बढ़ता है। इस समय चाहे तो 20 किलो इकट्ठा हो जाएगा। हमारे प्रेमनगर आश्रम पुल के ऊपर पहले से अगर सतर्क हो इसको एकत्र करने के लिए, तो बड़े बड़े फार्म हाउस सब भी हैं जहाँ से इसको नहीं, दुकानदार फुटकरिया दे देंगे। दुकानदार को भी जब मालूम हो जाए कि भाई ये बिक सकता है और इससे पैसा कमाया जा सकता है, तो उपलब्ध कर देगा दुकान, बेचने लगेंगे। नहीं, बेचने लगेंगे। जी 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 सर बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। पवन जी कुछ कह रहे हैं? I would like to request Agnihotri sir for his concluding remarks. Thank you, sir. Thank you. I think where the Parul Joshi ji is also there, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वो अपने कुछ अपना अनुभव देना चाहें। जी सर, मैं देना चाहूंगी। जी जी, क्योंकि 9 बजे वाला चाहते हैं आपके विचार। मैंने आपका नाम लिख लिया था जब तक आचार्य सीवी झा सर की बात पूरी हो रही थी, तो मुझे आपको बुलाना ही था। आइए, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। वैसे ये गायने का सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पता चलता है कि हम वैद्य हैं, तो लोग आते हैं और पूछते हैं कि भाई हमें ये समस्या है, तो आप हमें कुछ मदद कर सकते हैं क्या। तो वैसा एक पेशेंट आया था बीपीएच का, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया। उसका पेशेंट आया और उस वक्त डेज की प्रोस्टिना कैप्सूल जो है उसका बहुत चलन था। तो मैंने बोली इसका सुना है कि बहुत अच्छा है, आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं तो आई मे नॉट बी एबल टू गाइड यू, लेकिन आप इतना करके देखिए। 3 दिन के बाद आए और बोले कि मेरी सर्जरी जो है मैडम जी वो पोस्टपोन हो गई है। 3 दिन फिर दूसरा वैसा ही तीसरा केस, एक ही दिन में 2-3 केसेस आए थे। तो तीनों केसेस, और मुझे पता नहीं था वे कौन से सर्जन के केसेस है, लेकिन वे आए थे। तो सर्जन खुद मिलने आए हफ्ते के बाद, मैडम जी आपने क्या दिया, मेरी ग्राहकी कट गई, तो आई लॉस्ट माई पर्स, ऐसा करके वो आए, आपने क्या दिया। मैं बोली ये डेज की प्रोस्टिना कैप्सूल है, उसका बहुत चलन है। तो मैंने उनको बोला दो कैप्सूल सुबह शाम 2 बार लेनी है, भूखे पेट ले तो ज्यादा अच्छा है। फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट जगा, तो मैंने पेशेंट्स ऐसे आते थे, कपल हमारे पास आता है मेनोपॉज के साथ, जो हस्बैंड आता है वो बोलता है कि मैडम जी मुझे ये समस्या है, साथ में अगर आप मेडिसिन दे देती तो मेरा भी काम हो जाता, दूसरी लाइन में बैठना नहीं करके। तो फिर मैंने उनको हिमालय की, उस वक्त तो कोई मेडिसिन नहीं थी, लेकिन उस वक्त सिस्टोन और सेप्टिलिन दोनों अवेलेबल थी, तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन सुबह शाम देती थी और उससे काफी रिजल्ट मिलता था। लेकिन जो अनअफोर्डिंग है उसको तो गवर्नमेंट सप्लाई में ही देनी है। तो मैंने ट्राई किया त्रिफला गुकुल और चंद्रप्रभावती। अभी साहब बोल रहे थे कि हमें लेक्सेट डायूरेटिक्स नहीं देने हैं, लेकिन चंद्रप्रभावती डायूरेटिक होने के बावजूद उसमें गुकुल और शिलाजीतु जो ड्रग्स है वो जनरल टॉनिक भी है। तो डायूरेटिक वे है ही नहीं, ये वो जनरल टॉनिक है, लेकिन उसकी इफेक्ट है डायूरेसिस पर।
तो उससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। मैंने उसमें रिजल्ट में जुड़ने के लिए एरनब्रेस्ट हरितकी चूर्ण दिया था। एरनब्रेस्ट हरितकी टैबलेट जो है वो इतना रिजल्ट नहीं देती जितना चूर्ण देता है। तो उसमें भी मैंने देखा कि जो लोग सत्ववान है, ऐसे घिसे पिटे हो गए, तो उनको सिर्फ त्रिफला, गुगल और चंद्रप्रभा और हफ्ते में 2 बार एरनब्रेस्ट हरितकी चूर्ण सुबह 5 बजे देने को मैंने किया था। लेकिन जो सत्ववान थे उनको मैंने विरेचन से शोधन चिकित्सा करवाई। साल में 2 बार करवाती थी, वसंत काल के बाद और वर्षा के पूर्व, वर्षा के बादल आने से पूर्व उनको विरेचन से शोधन चिकित्सा करवाती थी और शरद काल में तो बिल्कुल करवाती ही थी। फिर उसमें मैंने ऐड किया कि शरद काल में आप रक्त मोक्षण भी करवाए। तो ये बीपीएच के पेशेंट नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जीते हुए वो जब मेरी ट्रांसफर हो गई तब तक तो वे वापस आए नहीं है। ये 2 पॉइंट्स में यहाँ ऐड करना चाहती हूँ, जिनको हम अगर पहले से ही 35+ जो है उनमें पेरिनियल एक्सरसाइज करवाए, रिट्रैक्टिंग द पेरिनियम, और फिर वो जब तक उसको रोक सके रोके और फिर धीरे धीरे करके छोड़े। एकदम से उसको सिकुड़ना हो और एकदम से छोड़ना ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे उसको रिट्रैक्ट करना, धीरे धीरे उसको छोड़ना। ऐसा करते करते पेरिनियल मसल्स जो है, पेरिनियल पेल्विक फ्लोर भी जो है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो काफी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। बाकी जो मैं बोलना चाहती थी वो तो आगे के वक्ता बोल चुके हैं, तो रिपीटिशन तो हमारे यहाँ मना है। एक पॉइंट जो चर्चा नहीं हुई वो है कर्ण वेदन का। हमारे यहाँ पर बालक का कर्ण वेदन अवश्य था। कर्ण वेदन संस्कार है और राइट आई में, राइट ईयर में ही करना है। और उसके लिए महर्षि सुश्रुत ने बताया है कि जो दैवकृत छिद्र है उसको सूर्य प्रकाश में देख के 6 माह का बच्चा जो है जिसका हम लोग उपवेशन संस्कार करवाते हैं, उसी के साथ उसका कर्णवेदन संस्कार करवाना था। और वो करवाने के वजह से उसका जो प्रोस्टेटिक हेल्थ है वो मेंटेन रहता है। और जो बाकी बात बताई कि लंगोट धारण करना, उससे बहुत बहुत फायदा होता है। जिनमें प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है उसमें भी कॉपिन धारण करने से फायदा होता है। तो ये तो बहुत बढ़िया चर्चा हुई है। और आज तो मैं बोलूं पवन साहब, आपका शब्द मैं बोलूंगी, आज तो पूरा प्रोस्टेट पे कंप्लीट सेमिनार हो गया आपका। सभी आ गए इसमें, यानी आज हम लोग कंप्लीट कर पाए। आज तो हमारा अचीव किया है साहब। सो कांग्रेचुलेशंस टू टीम IRES। आप कह रहे हैं आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और लेडीज, मतलब गायनी से भी की तरफ से भी सभी लोग आ गए, ये कहना है आपको। और अब तो आपके काम को और भी आसान कर दिया, क्योंकि आपने कहा ना हम गायनी हैं, लेकिन ठीक है मेल तो उनके काउंटर पार्ट हस्बैंड है, वो आते ही हैं, तो फीमेल्स अपनी प्रॉब्लम अपने हस्बैंड की भी जिक्र करेंगी आपसे, या वो संग आएंगे तो वो भी कह ही देते हैं। साथ में हिमालय वालों ने अब हिमप्लेशिया बना दिया तो और काम थोड़ा आसान हो गया। जी तो पहले भी बिल्कुल। प्रोशाविन आ गया था हमारा एनविन वालों का, तो अच्छा है, लेकिन इंग्रेडिएंट वही है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर प्रकाश त्रिवेदी जी जी जी। अरे क्या बात है सर, क्या मेरे बात। ऊपर नाम लिख के रखा हुआ, बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रकाश क्या त्रिवेदी जी का। ज्योतिष बता सकता है कि इसको प्रोस्टेट होगी? आदरणीय प्रकाश त्रिवेदी जी नमस्कार, स्वागत है। ज्योतिष जी आप म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मिस्टर प्रकाश त्रिवेदी जी is astrologer, renowned astrologer in सवाई माधोपुर, so welcome सर मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैं 1 मिनट में इस बात को खत्म करूंगा। मैं जहाँ पर रहता हूँ तो वहां पर बहुत विशाल जंगल है। अच्छा। आपने रणथंभौर के जंगलों का नाम सुना होगा, वो मेरे शहर के अंदर ही है। और यहाँ पे जितनी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, शायद ये मान के चलो कि खजाना है, हम खजाने के बीच में रहते हैं। अभी जो जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि प्रोस्टेट है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी आयुर्वेद के अंदर या ज्योतिष शास्त्र के अंदर कोई भी जो रोग होता है, कोई भी रोग होता है, वो उसको हम बोलते हैं या तो संचित होगा या प्रारब्ध होगा या क्रियामान होगा। कि जिसको हम बोलते हैं कि संचित मतलब पूर्व जन्मों के कर्मों से भी रोगों का निर्धारण किया है ज्योतिष के अंदर, कि कई ऐसे रोग हैं जो पूर्व जन्मों के कर्मों से होते हैं। उन लोगों का किसी भी
चिकित्सा के अंदर उसका समाधान नहीं बताया गया है। जो रोग ऐसे हैं उनका कोई भी समाधान नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं कि वो संचित कर्म है, जो उन्होंने पिछले जन्मों में जो पाप के कर्म किए थे उनकी वजह से वो रोग क्रिएट हुए। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अगर हम बात करें, मेरे पास में पुस्तक रखी है कि जैसे उदर रोग, उदारोग, उन्माद, अपसार, पहुता, कर्ण रोग, वाग योग, प्रमेह, भगंदर, प्रदर, वायु विकार, पुष्ट से, अंधता, मुख रोग, नासा रोग, मतलब कई सारे रोग ऐसे हैं जिनका किसी भी प्रकार का कहीं पर भी चिकित्सा के अंदर वो नहीं है। हम जब प्राचीन ग्रंथों में चलते हैं तो सबसे पहले वराहमिहिर जी की बृहत संहिता के अंदर इसका उल्लेख है कि फिर उसके बाद में हम आते हैं तो अपने जो ये अगर बृहत संहिता की बात करें, आप सोचिए 5वीं शताब्दी के अंदर भी इस चीज का उल्लेख है कि 5वीं शताब्दी के अंदर जो बृहत संहिता के अंदर इस चीज का उल्लेख है कि जो मूत्र कच्छ रोग है या जो जिसकी हम बात करें प्रोस्टेट वाली जो रोग है, ये सारे के सारे मंगल और शुक्र से रिलेशन होकर के बनाया है। इसको इन्होंने जो क्रेमान के अंदर माना था, इसको आहार विहार से भी जोड़ा था और पिछले पूर्व जन्मों के कर्मों से भी इसको रिलेटेड किया था कि इसके अंदर आदमी को, लेकिन इसके अंदर इसका समाधान भी बताया गया है कि इसका समाधान किया जा सकता है। तो किसी भी समाधान करने से पहले मैं बिल्कुल शॉर्ट में चलूंगा, मेरे को मालूम है कि सब लोग बहुत देर से थक गए होंगे, कि मैं बहुत शॉर्ट के अंदर इसके अंदर चलूंगा कि इसका जो समाधान जो बताया है, इसका समाधान में सबसे पहले बताया कि किसी भी रोगी की को देखने के लिए सबसे पहले उसकी आयु का निर्धारण करना चाहिए कि उसकी आयु क्या है, कि क्या वो उस आयु के अंदर वो ठीक हो सकता है, उसकी दशाएं क्या है, फिर उसकी जो ग्रहों की डिग्रीज होती है, हर ग्रह की कोई भी जो रोग होता है उसकी एक डिग्रीज निर्धारित होती है। वो ग्रहों की डिग्री 0 से 23 डिग्री तक चलती है, उसको 15 डिग्री जो मैक्सिमम बोलता है। यदि वो 15 इंच पर है तो हम ये मान के चलेंगे कि उसका बहुत अधिक प्रभाव है। यदि वो 0 से 4 अंश बाल्यावस्था के अंदर है तो बाल्यावस्था के अनुरूप उसका प्रभाव होगा। जब वो वृद्धावस्था में 20 डिग्री तक है तो ये मान के चलेंगे उसका वृद्धावस्था का प्रभाव होगा। कोई भी हेलो जी मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। हाँ, तो उसमें ऐसा नहीं है, हर रोगों का जहाँ पर बोलते हैं कि सारे चिकित्सा और जहाँ पे पूरा सिस्टम सब समाप्त हो जाता है उसके बाद में ज्योतिष काम करता है। ज्योतिष के अंदर बहुत सारे समाधान बताए हैं, हर कुंडली में हर डिग्रीज के आधार पर इन सब चीजों को है। हम लोगों ने जो जिस चीज का समाधान करता है, हम लोग स्थान को यूज करते हैं कि हरिओम। आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अभी बंद हो गई थी। जी प्रकाश जी बोलिए। हाँ आ रही है, बोलिए। जी सर, तो क्या है कि जो गृह चिकित्सा के अंदर जो स्नान का एक बहुत बड़ा महत्व माना गया है कि फलित ज्योतिष के ग्रंथों में कहा गया है कि जैसे लाजवंती है, कूट है, वारियार, कांगनी, मोथा, सरसों, हल्दी, देवदार, सरसों का लोद, इनको 300 तक जलों में मिला करके स्नान कराया गया है तो किसी भी औषधि का नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, और जो कई आचार्यों का मत है जो ग्रह जिस रोगों को बना रहा है, जिस रोग को वो क्रियान्वित कर रहा है, यदि उससे संबंधित औषधि को जल में भिगो करके सुबह उसका स्नान कराया जाए तो उस ग्रह की रश्मियां कमजोर हो जाती है और शरीर स्वतः ही उस चीज को ठीक करना चालू कर देता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो प्रोस्टेट वाली जो चीज है, जो प्रोस्टेट जो ग्रंथि है, इसको हम शुक्र से और मंगल से रिलेटेड करके जोड़ते हैं कि ग्रंथियों को तो मंगल से लेकर चलते हैं और जो मूत्र वाले जो रोग होते हैं उसको शुक्र ग्रह से लेकर के चलते हैं। Thank you very much. अग्निहोत्री सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो आज हम लोग 484th वेबिनार पर शामिल हुए और बहुत ही ज्वलंत विषय रखा हम लोगों ने, प्रोस्टेट, पौरुष ग्रंथ वृद्धि
और इससे जुड़े हुए विकार, चाहे वो मूत्र विकार हैं या पौरुषग्रंथि विकार हैं। और बहुत ही विद्वान वक्ताओं ने अपनी अच्छी नॉलेज के द्वारा हम लोगों के आज के प्लेटफॉर्म को लाभान्वित कराया। राइट फ्रॉम मैडम KCP गुणरत्ने जी श्रीलंका से, और डॉक्टर AK द्विवेदी जी ने होम्योपैथी से इंदौर से, और डॉक्टर फिरदौस जी ने अपना यूनानी से चर्चा की। और उस चर्चा में उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमारे पैनल के साथ में जुड़े हमारे जो विशेष रूप से डॉक्टर जी सोफी जी, उन्होंने बहुत ही गूढ़ विषयों को और क्लियर किया आज की तारीख में कि किस तरीके से पीछे जमाने में यह काम चलता था, आज इसको वैज्ञानिकता दी। डॉक्टर श्रीराम शर्मा जी ने अपने और विचार रखे, मूत्राघात को लेकर बतलाया कि मादा निदान के द्वारा क्या क्या उन्होंने जानकारियां दी थी, जिसको आज प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। साथ में हमारे गुरुजी जुड़ गए, प्रोफेसर CV झा साहब ने पुरानी यादें दिला दी, 40-45 साल पुरानी जामनगर की, और जो भुट्टे के जो बाल को क्लिनिकली कितना उपयोगी बताया, जिस पर वर्क हुआ, और प्रोस्टेट के इसमें BPH से लाभ मिलता है। वैद्य पारुल जोशी ने जो चीज एक विषय छूट रहा था, कर्णवेदन संस्कार, जिससे के द्वारा प्रोस्टेटिक डिसऑर्डर्स को बाल्य अवस्था में यानी 6 महीने साल भर की अवस्था में ही उसका प्रिवेंशन कर दिया जाता था, वो चर्चा की। प्रकाश त्रिवेदी ने ज्योतिषीय आधार पर बताया कि मंगल और शुक्र अगर हैं तो और कितने डिग्री का ग्रह उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं तो रोग साध्य होगा या असाध्य होगा। इस ग्राउंड को लेके अगर ज्योतिषीय समाधान उपादान भी किया जाए औषधि उपचार के साथ में, तो हमारे रोगी को ज्यादा फायदा मिलेगा। इन सबका हम धन्यवाद करते हुए विशेष रूप से जिन चर्चाओं को लोगों ने अपने अपने ज्ञान को आज मुक्त कंठ से हम लोग साथ दिया, डॉक्टर महेश शर्मा जी साहब ने विशेष रूप से सभी लोगों ने ये बतलाने की कोशिश की कि अब वो समय आ गया है कि आयुर्वेद को हम वैज्ञानिक चश्मे से ही देखें। आयुर्वेद को केवल ग्रंथस्थ और एक ट्रेडिशनल मेडिसिन न मानते हुए वैज्ञानिकता ही उभारते हुए हम इसके जो स्वीकार्यता है उस क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे अपने देश में, अपने सभी सेक्टर्स में और विदेशों में भी। तो हमारी अगर ये कल्पना होती है, हमारी ये प्रयास रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारे वेबिनार्स के द्वारा किए जाने वाला ये अनथक जो परिश्रम चल रहा है, ये निश्चित रूप से सबके सिर पर चढ़ के बोलेगा और विश्व में जाके इसकी अपनी मान्यता को स्थापित कर सकेगा। जैसा कि लगातार मान्यताएं मिल रही हैं, कीर्तिमान बन रहे हैं। प्रोफेसर पवन शर्मा जी का विशेष रूप से इसके लिए हम सब लोगों को इस मुक्त कंठ से उनकी सराहना बधाई देनी है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में हम पुनः प्रोफेसर पवन शर्मा जी को प्लेटफॉर्म आगे के कार्यक्रम के लिए संप्रेषित करते हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमन, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का सर। शुभरात्रि। अब परसों मिलेंगे कैंसर के लिए। शुभरात्रि, बहुत बहुत शुभरात्रि।